No. So we have started the meeting. Okay. All right. So before we start, I want to understand a couple of things. Number one, like everyone here who understand Hindi, or there are people who face issue in understanding Hindi. I mean, is there anyone who want this session to be in English, or can we move into, I mean, switch between both the language? All right. So हिंदी में भी बात कर सकते हैं. Okay. All right. So so this session is basically where, I mean, I just thought like a couple of parents asked me, I mean, the journey, like how we started, and what are the issues we have faced in order to identify the like the right treatment, right therapist, or school, or other stuff. So I'm just going to share those things as much as I remember, because it's been more than 5 years. Yeah, more than 5 years when we started. So those points which I remember, I'm going to share with you. And in between, if you have any question related to anything, then you can put it over chat, or you can ask me over this session. Okay. So let me share. I just prepared a PPT for you guys as well as for myself to recall. Okay. So actually, Darsh helped me in to prepare this PPT. हेलो बोलना है? हेलो बोलो. हेलो. जोर से बोलो. हेलो. Okay. So Hello. बोलो हेलो. हेलो. All right. Hello. Adarsh, How are you? Fine. Uh, how are you? How are you? Hello. How Oh, yeah, they are asking how are Hello. Darsh, how are you? you? Fine. Fine. All Me right. also fine. All right. So, okay. So this, I mean, Darsh born in 2012, December 20th, and there was no issue, I would say, in terms of delivery. Like generally, people say like, okay, I mean, at the time of assessment, people say like, okay, is there any issue with the delivery or not, and all, because those issues cause this issue. Sometimes they say like autism इस वजह से भी होता है कि बहुत टाइम भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस रहे होंगे, या ये है वो, मालूम नहीं, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स से पास्ट में डिस्कशन भी हुआ है, और जो अपना भी ऑब्जर्वेशन रहा है, कितना ट्रू है कह नहीं सकते इसके लिए. ये कुछ लोगों को 4 साल में पता लगता है ऑटिज्म, किसी किसी को 2 साल में पता लग जाता है. तो ऐसा कोई पैरामीटर या कुछ है नहीं हमारे पास सॉल्यूशन जिससे डिटेक्ट किया जा सके, until unless you observing your child behavior closely. There are certain milestones which every parent need to know. I mean, I would say like they need to learn it if they don't know. Otherwise क्या होता है कि हमारे सराउंडिंग्स में ऐसे लोग होते हैं जो हमें सजेशंस देते रहते हैं कि अच्छा ठीक है, अभी नहीं बोलना, बच्चा बाद में बोलेगा, या ये चीज़ अभी नहीं कर रहा तो बाद में करेगा. तो उससे क्या होता है, कई बार कंफ्यूजन्स भी रहती है, और कई बार लोग इग्नोर कर देते हैं, जिसका आगे चल के बड़ी दिक्कत होती है हमें. हम लोगों के साथ भी ऐसा ही था कि स्टार्टिंग में इसको अकेले ही मज़ा आता था. और एक चीज़ और भी थी, जब ये 6 महीने का था तभी से इसके पेट में मतलब हमेशा कभी लूज मोशन, कभी कॉन्स्टिपेशन, ये सब की प्रॉब्लम रहती थी. उतना ज़्यादा सोशल ये था नहीं जितना कि नॉर्मली बच्चे होते हैं, कि आप उनके साथ बात करने की कोशिश करो तो देन दे रिस्पॉन्डेड. आई कॉन्टेक्ट नॉट देयर एट दैट टाइम. So after a year, I mean, we just thought like, okay, why he's not behaving like any other kid of his age, whether it's in terms of speech. I request other folks to be on mute. Otherwise, in recording, we will see echo. All right, thanks. So after a year, when he was around, I would say 1 year, 6 or 7 months. Oh yeah, that time. Okay. So that time,
someone said like, okay, I mean, at by this age, he should have some speech. He should follow certain instructions. He should have need-based speech, or I mean, he should demand. I mean, whenever he is hungry or whatever, he should demand that those things. But he was not uh, doing those activities. So we had friends and relatives in US, so they said, okay, when such thing happen, I mean, they discussed the same with their colleague over there, and they said like, if kid having these symptoms, then it could be autism. So by that time, we were not aware of autism, like what is autism and how to go with it. Then we started going through it, did Google, and like any other parent, it was a shock. I mean, no parent can accept it in one go. Okay, my child having this condition, and that time it was not a condition. That time it was a disease or something like that. I mean, whatever you can think of. So then someone suggested to, okay, just visit pediatrics, child pediatric. We went to a pediatric, और उसको कुछ समझ में नहीं आया, मतलब उसने कुछ नहीं कहा, उसने कहा नहीं बच्चे करते हैं, कुछ बच्चे देर से बोलते हैं, कुछ बच्चे ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, और हमें घर में भी ये सुनने को मिलता था कि अरे उनका बच्चा भी देर से बोला था, तो ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। फिर हम लोग एम्स में गए जस्ट टू चेक कि ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अच्छी बात है, बट एक बार चेक करने में क्या है। देन वी वेंट टू एम्स न्यू दिल्ली, और वहाँ पे जाने के बाद यही हुआ कि उन्होंने न्यूरोलॉजिस्ट के पास में रेफर किया कि वहाँ पे आप जाओ और उनसे डिस्कस करो, प्रोबब्ली दे विल शेयर समथिंग विद यू। सो बट हम लोग वहाँ पे पहुंचे नहीं, उससे पहले ही हमें कोई एम्स से मिला जिसने हमें रेफर किया वीना कालरा के पास, तो नई दिल्ली में है। वीना कालरा इज ए चाइल्ड psychiatrist, pediatrics, I mean, and neurologist. So many degrees she have, and she's retired from AIMS, and she's running her center in Lajpat Nagar currently. So I remember in the month of October, October 2014, we visited their center, और वहाँ जाने के बाद ऐसा लगा कि यहाँ तो दोबारा कभी आना ही नहीं है। इतनी बुरी हालत थी वहाँ पे। एक तो उनका सेंटर बड़ा ही मतलब हौच पौच सा रहता था उस टाइम पे, अब तो फिर भी थोड़ा ठीक है। और दूसरा वहाँ पे जिस तरीके के बच्चे आते थे, उन्हें देखने के बाद आप जैसे कहते हैं ना, टूट जाना अंदर से, वो वाली फीलिंग आती थी कि मतलब क्या होगा, मतलब यही हमारा फ्यूचर। जितना ज्यादा आप टूट सकते हो समझो उस टाइम पे टूट गया। उसके बाद में वहां से निकले, उन्होंने कुछ मेडिसिन वगैरह बताई। उन मेडिसिन को जब हमने रिसर्च किया तो पता लगा, ये जो हम लोग ग्रुप में कई बार डिस्कस करते रहते हैं, रेस्पिरिडोन और समथिंग, जो कि बच्चे को डाउन कर देती है। एक तरीके से समझो बच्चा 24 आवर नशे में है। जब नशे में है तो ना हाइपर एक्टिविटी होगी ना कुछ होगा, फायदा तो मतलब ये उनका सॉल्यूशन था उस टाइम पे जब बच्चा 2 साल का भी नहीं था। हमने वो मेडिसिन दिया ही नहीं, हमने स्टॉप किया, हमने कहा कोई फायदा नहीं है, क्योंकि और उस टाइम पे हमने पढ़ा हुआ था जितना, उससे हमें ये समझ में आया कि ऑटिज्म 3 साल के बाद पता लगता है कि हाँ है एक्चुअली। हमारे पास 1 साल का टाइम था, बट इतना वेट नहीं कर सकते थे। फिर हमें किसी ने बताया कि आप स्पीच थेरेपिस्ट फाइंड आउट करो, दे हेल्प इन ब्रिंगिंग स्पीच। देन वी डिड गूगल। दैट टाइम हमारे आसपास भी कोई नहीं था जिसको ऐसा कुछ हो, और या जिससे हम डिस्कस भी कर सकें। अपने आप गूगल किया। नोएडा के अंदर बहुत सारे हियरिंग एंड स्पीच सेंटर्स हैं जो कि पता नहीं क्या क्या सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। शायद वो हमारे बच्चों के लिए नहीं है, वो नॉर्मल बच्चों के लिए है जिनके स्पीच या हियरिंग में कुछ प्रॉब्लम होती है, वो थोड़ा बहुत डिवाइस वगैरह लगा के हो जाता है। हम उनके पास गए, उन लोगों ने काफ़ी टाइम वेस्ट किया हमारा, और उनकी अप्रोच भी हमें लॉजिकल नहीं लगती थी कि बच्चा जब बैठ नहीं पा रहा तो तुम उसको कैसे वो सब चीज़ें कराने की कोशिश कर रहे हो जो कि एक्सपेक्टेड ही नहीं है उस एज में। सो बट दैट गाय सजेस्टेड अस कि आप ओटी स्टार्ट करो, ओटी से इसके अंदर थोड़ा स्टेबिलिटी आएगी, ये कम से कम बैठेगा, कमांड फॉलोइंग करेगा। और वो जो भी चीज़ें बताई हमें समझ में नहीं आया। हमने कहा कि उस टाइम पे की ज़रूरत क्या है, बिकॉज ऐसा लाइक फर्स्ट चाइल्ड है, फर्स्ट एक्सपीरियंस है, सामने वाला हमें समझा रहा है, हम सुन रहे हैं, लॉजिक ही यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन तो है नहीं हमें कि व्हाट इज ऑटिज्म एंड व्हाट इज द इम्प्लीकेशन ऑफ दैट इफ वी डिले इट। अर्ली इंटरवेंशन चीज़ें जैसी चीज़ें हमें नहीं मालूम थी उस टाइम पे। Then we met Dr. Sorry, yeah, we visited Apollo Hospital here in.
नोएडा एज वेल एज इन, या इन नोएडा। वहाँ पे उनका ये था चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट को दिखाओ। नॉर्मली हमारे बच्चों को सीधा वो लोग चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के पास भेज देते हैं। 2 साल का बच्चा, 2.5 साल का बच्चा, आई डोंट नो कि अगर किसी नॉर्मल बच्चे का भी साइकोलॉजिस्ट एक असेसमेंट करे तो क्या निकल के आएगा। लेकिन उनको अपने पैसे बनाने होते हैं तो वो यहाँ वहाँ एक दूसरे को रेफर करते रहते हैं, और इनका एक पूरा सिंडिकेट है कि मैं उसको रेफर करूंगा, वो उसको रेफर करेगा, ये हमको घुमाते रहते हैं। और ये छोटे से लेके बड़े सबके अंदर होता है ये सिस्टम। वहां से हमें वो ये अच्छा हुआ हमारे साथ में कि जो भी चीज़ें हुई जल्दी जल्दी हुई हमारी। हमने हमने वेट नहीं किया कि हम वेट करेंगे 1 महीने या 2 महीने चीज़ों के होने का। हम लोग हर रोज कोशिश करते हैं कि इंफॉर्मेशन मिले, लोग मिले जो हमें इसमें हेल्प कर सकें। अगर कोई हमें एक इंडिविजुअल नहीं कर पा रहा तो हम उसको स्किप कर देते और नेक्स्ट आगे बढ़ते थे। तो 2 महीने के अंदर ही हमें उज्जवल सर मिले, जो कि हमारे सेशंस अभी लेते रहते हैं ऑनलाइन वेबिनार्स में। तो स्टार्टिंग वहाँ से हुई। फर्स्ट टाइम हम लोग किसी थेरेपी सेंटर में गए। वहाँ जाने के बाद फिर एक अलग ही एक्सपीरियंस था कि ये क्या चीज़ है। अब अब इन सब चीज़ों से गुजरना पड़ेगा। फिर वहाँ पे कुछ हमें एक पेरेंट मिले। पेरेंट थे काफ़ी, बट सभी पेरेंट्स टूटे हुए थे हमारी तरह ही। किसी से बात करने का मन नहीं करता। क्या बात करेंगे और क्या किसी की प्रॉब्लम को हम समझेंगे, क्योंकि समझ में नहीं आ रही थी चीज़ ये हो क्या रहा है। फिर वहाँ से किसी ने हमें सजेस्ट किया कि आप बायोमेडिकल ट्रीटमेंट शुरू करो डॉक्टर दीपक गुप्ता के पास में, क्योंकि उनका बच्चा हमारे बच्चे से 6 महीने बड़ा था और उसके अंदर काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, लाइक कमांड फॉलोइंग। अब हमारा बच्चा उस टाइम पे उसको कह दो कि ये बॉल पड़ी है, इसको उठा के वहां रख दो, या वहां से बॉल ला के हमें दे दो, वो नहीं दे पाता था। या ये रिंग उठा करके इसमें डाल दो, वो नहीं उसको समझ में आता था क्या करना है मैंने इसके साथ। तो उज्जवल सर ने काफ़ी मतलब उस टाइम पे एफर्ट डाला, एक्टिविटीज़ की, थेरेपीज में जो भी होती हैं उससे 2 से 3 महीने में हमें चेंजेस आने शुरू दिखने लगे कि हाँ ये तो कर रहा है, कमांड भी फॉलो कर रहा है। अदरवाइज दिमाग में ये थॉट था कि पता नहीं कभी ये कमांड भी फॉलो हो पाएगा या नहीं कर पाएगा ये। एंड उसी बीच में किसी ने हमें सजेस्ट किया आप स्पीच थेरेपी शुरू करो। और अच्छा, उससे पहले हमने एक प्ले स्कूल भी सोचा ट्राई करने के लिए। कुछ लोगों ने सजेशन दिया कि बच्चों के बीच में रहेगा तो ठीक रहेगा, तो हमने एक प्ले स्कूल ट्राई किया। लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उस प्ले स्कूल में हमारे पैसे ही वेस्ट हुए। और उसके बाद में हम लोगों ने स्पीच थेरेपिस्ट फाइंड आउट करना शुरू किया दोबारा से, क्योंकि ये था कि हाँ अब इसमें थोड़ा सा सेटलमेंट हो गया, अभी बैठ सकता है। तो वहाँ से हम लोगों ने स्पीच थेरेपी फाइंड आउट करना शुरू किया। और तब तक ये 2 साल का हो चुका था। दीपक गुप्ता के साथ फर्स्ट अपॉइंटमेंट हमारा जब ये 2 साल 1 महीने का था तब मिला। उस टाइम भी वही सब प्रॉब्लम थी कि इनका अपॉइंटमेंट 2 महीने में मिलता था। तो जिस पेरेंट ने हमें रेफर किया था उन्होंने अपना स्लॉट हमें दे दिया था कि ठीक है आप मुझसे पहले चले जाओ। और फिर हम लोग फरवरी 2015 में गए उनके पास में, और उसी बीच में हमारे को किसी ने रेफर किया कि आप रुपेश से बात करो। उस टाइम पे इन्होंने अपना सेंटर शुरू ही किया था। तो ये और इनके ब्रदर रोहित और एक जन और थे इनके साथ में, वो 3 लोग करते थे। तो रुपेश का तो हमें नहीं मिल पाया, रोहित का हमें मिला। रोहित नए थे हम उस टाइम पे, तो ट्रस्ट नहीं था। और दूसरा उस टाइम पे फ्रस्ट्रेशन भी होती है और एक जल्दबाजी भी होती है कि जल्दी जल्दी चीज़ें हों। तो 3 साल में तब तक कितने हो चुके थे इसको, सॉरी 2.5 साल में पहुंच गया था ये। और उसी टाइम पे ये शुरू हो गया इसका थेरेपी वगैरह। अब हमारे लिए चैलेंज ये होता था कि आप ओटी के लिए लेके जाओ, स्पीच के लिए लेके जाओ। अच्छा, स्पीच के लिए हम लोगों ने एक टाइम पे 2 थेरेपिस्ट रेफर करते थे। हुआ यूँ था कि कुछ चीज़ें जैसे अभी हम लोग में डिस्कस करते हैं कि हमारे बच्चे कुछ साउंड्स हैं वो नहीं बोल पाते हैं। ट हो गया, प हो गया, फ हो गया, कुछ डिफिकल्ट होते हैं साउंड। तो हमारे जो थेरेपिस्ट थे वो नहीं कर पा रहे थे, तो उसके लिए हम लोग नोएडा से ग्रेटर कैलाश जाते थे वीक में 2 दिन। वहाँ पर डॉक्टर दीपक गुप्ता के यहाँ पे एक आते थे, कुमार गौरव करके, जिनके बारे में हम पास्ट में डिस्कस कर चुके हैं ग्रुप में। काफ़ी मतलब फेमस है वो, कि स्पीच वगैरह लाने में उनका काफ़ी अच्छा रहता है।
तो उनके थ्रू काफ़ी हेल्प मिली हमें। प्रॉब्लम एक ही होती थी कि यहाँ से बहुत दूर पड़ता था हमें, और मतलब समझो 2 घंटे जाने के 2 घंटे आने के, और उसमें 30-35 मिनट्स का थेरेपी सेंस नहीं बनता था, और कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा थी, 700-600 उस टाइम पे। एंड आफ्टर दैट 6 मंथ में इसके साउंड्स वगैरह आ गए थे, वो सब ठीक था। और स्पीच हमने थेरेपी कराई होगी अराउंड 1.5 ईयर्स रुपेश के पास में। तब तक साउंड्स वगैरह आ गए थे, अंडरस्टैंडिंग इसकी डेवलप हो चुकी थी। हमने एक चीज़ और किया कि ये लोग की जो थेरेपी सेशन होता था, वो ये कह रहे थे हम स्पीच प्लस एबीए करा रहे हैं। दैट टाइम आई वाज नॉट अवेयर ऑफ व्हाट इज एबीए। ठीक है, टर्म है एबीए, बट व्हाट एक्चुअली इट्स गोइंग टू चेंज, आई वाज नॉट अवेयर ऑफ दैट टाइम। तो मेरा अपना लॉजिकली ये था कि मैं ठीक है, जैसे जो भी इसको पढ़ाते थे उस टाइम पे, ये कि ये आइडेंटिफिकेशन में कि ये एप्पल है, ये बस है, ये कार है। So I used to take him outside and show him, okay, this is tree, this is plant, this is car, this is bus, this is auto, और ये ऑटो इस कलर का है, बस इस कलर की है। और इसके साथ कंटिन्यूस बोलते रहना होता था। थेरेपिस्ट ने भी कहा था कि आप इससे बात करो, जितनी बात करोगे, जितना समझाओगे, उतना ये समझेगा। तो उस टाइम पे लगता था कि इसे समझ में तो कुछ आ नहीं रहा, अननेसेसरी अपनी एनर्जी वेस्ट हो रही है। मैं इसको कार में लेता था और लेके दिन दिन भर घूमता रहता था, कभी किसी रिलेटिव्स के यहाँ, कभी कहीं पे, कभी ऐसे ही रोड पे निकल जाते थे। और इसको मैं रास्ते भर बताते रहता था कि ये रिवर है, ये हम लोग इस जगह आ गए हैं, जगह का नाम बता दिया, ये हॉस्पिटल है, ऐसा है वैसा है। जैसे मतलब आप बोले जा रहे हो, सामने वाले को सुन रहा है कि नहीं सुन रहा मालूम नहीं, बट इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट ये मैंने किया काफ़ी। और मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि इसको वो सब चीज़ें धीरे धीरे इसके दिमाग में फीड हो रही हैं, और जैसे ही इसकी स्पीच आई, इसको समझ में आना शुरू हो गया। एक टाइम के बाद में जैसे हम लोगों को लगता है कभी-कभी, स्पेशली जो हमारे अभी पेरेंट्स 2-3 साल एक्सपीरियंस, मतलब जिनके बच्चे 2 या 3 साल के हैं, उनको लग रहा होगा कि हमारे बच्चे कुछ समझ तो रहे नहीं है, हम कुछ भी बोल रहे हैं, कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता है, इनके दिमाग में ना रिकॉर्ड होती रहती हैं चीज़ें। ये जिस रास्ते से थेरेपी में जाते हैं, वो रास्ते तक इनको कुछ टाइम बाद याद हो जाते हैं, और जैसे कोई थेरेपिस्ट होता है इनको पसंद नहीं होता, और जब ये वहाँ जाते हैं उसके पास में, तो इनको वही सब चीज़ें याद आने लगती है कि नहीं नहीं, इस रास्ते से आप जा रहे हो, नहीं जाना, और रोना शुरू कर देंगे, और जैसे ही आप रूट चेंज करो खुश हो जाएंगे। इसका मतलब दिमाग चल रहा है, चीज़ें समझ में आ रही हैं। और इसके बाद में नेक्स्ट हम लोग, अच्छा उसी बीच में हमें होम्योपैथी के बारे में किसी ने बताया था, जब ये 3 साल का होने वाला था, कि आप बायोमेडिकल चला ही रहे हो और ओटी और स्पीच चल रहा है, तो आप एक बार होम्योपैथी भी ट्राई करो। तो हमने नवंबर में डॉक्टर आलोक पारिक के पास गए थे, बट उससे पहले 6-7 महीने पहले ही हम लोग उसके पास गए थे। एक चंडीगढ़ में डॉक्टर शर्मा है, विकास शर्मा समथिंग, उनके पास गए। उनकी अप्रोच समझ में नहीं आई, और बड़ा स्ट्रगल होता था मेडिसिन को लेकर के कि, और उनसे बात करना ही अपने आप में एक बड़ा चैलेंज था। हम लोग 1-2 बार गए, बट कोई खास फायदा नहीं दिखा, तो हमने बंद कर दिया। फिर किसी थेरेपी में हम लोग गए, तो किसी पेरेंट, उसने कहा पेरेंट ने कि हम लोग आगरा जाते हैं, आप चलो हमारे साथ। तो हम लोग गए वहाँ पे। उनकी प्रोसेस भी काफ़ी टफ है, आलोक पारिक जी की। बट वहाँ से जो हमने मेडिसिन लिया, उसका हमें बहुत ज़्यादा फायदा हुआ, और वो अभी भी हम लोग ले रहे हैं। इवन आज ही नई मेडिसिन आई हैं अगले 2 महीने के लिए, और ये सब हम लोग ईमेल के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, फ़ोन पे या पर्सनली। आज तक शायद, अगर मैं देखूं, कितने साल हो गए हमें, 2015 से 5वां साल चल रहा है हमें। मुश्किल से 2 बार या शायद 3 बार ही गए होंगे हम लोग उनके पास। और उनकी दवाई से मैं ये कहूँगा कि एक टाइम ऐसा था कि हमने दीपक गुप्ता को ही बताया, तो उनके साथ में हमने इसको सिंक किया कि ओके, दीपक गुप्ता यूज्ड टू से लाइक, ओके आई एम वर्किंग ऑन दीज थिंग्स, यू कैन आस्क डॉक्टर आलोक पारिक टू वर्क ऑन दीज थिंग्स। सो उस समय थोड़ा सा लगा लॉजिकली कि अच्छा, मतलब हो सकता है कुछ चीज़ों के सॉल्यूशंस इनके पास ना हो, बट हो सकता है होम्योपैथी में हो। दैट्स व्हाई ही इज सेइंग दैट। और उसने कभी मना नहीं किया कि आप बायोमेडिक के साथ में ये मत चलाओ, जबकि मैं सुनता हूँ ग्रुप में भी, मैं देखा है कई बार लोगों को बात करते हुए कि इफ़ दे आर गोइंग थ्रू होम्योपैथी, देन उनको
कोई सॉरी अगर कोई और ले रहे हैं तो होम्योपैथी इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है, या मतलब एक टाइम पे एक ही चला सकते हैं। मैं किस पे कमेंट नहीं कर सकता, बट जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है वो ये है कि शायद बायोमेडिकल से भी ज़्यादा मुझे ट्रस्ट है होम्योपैथी पे, जबकि मैंने लाइफ में खुद कभी आज तक होम्योपैथी ट्राई नहीं किया। और बच्चे के केस में मुझे लगा कि हाँ, इससे चेंजेस आ रहे हैं। इवन कभी कुछ हुआ कि मेडिसिन आने में देर हो गई या किसी वजह से जहाँ पे 10-15 दिन का डिले आ गया, तो वो सीधा नज़र आता था कि ये हाइपर एक्टिविटी बढ़ गई या बिहेवियरल इश्यूज आ रहे हैं या रिपीटेशन बढ़ गई, या पेट। सबसे ज़्यादा रिलीफ होम्योपैथी से में मिला हमें पेट को लेकर के। गट इश्यूज बहुत रहते थे इसको, हमेशा हमेशा लूज मोशन या ये क्या कहते हैं कॉन्स्टिपेशन, ये चीज़ें बहुत रहती थी। तो हमने ज़्यादा, सच बताऊं तो जब से हमने ये इनिशियली काफ़ी रिसर्च किया, स्टडी की, बट जब से हमने ये थेरेपी स्टार्ट की और बायोमेडिकल होम्योपैथी किया, उसके बाद में ज़्यादा स्टडी करना बंद कर दिया। क्योंकि क्या होता है कि जितना आप स्टडी करते हो उतने आपको सॉल्यूशंस मिलते हैं। अम, मैं आईटी में हूँ, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स यूएस में रहते हैं और भी दूसरी कंट्रीज में रहते हैं, तो हमारे को पता लगते रहता है वहाँ पे क्या चल रहा है नहीं चल रहा, और इजीली इंफॉर्मेशन मिल जाती है। अगर इवन मेडिसिन वगैरह भी चाहिए तो, या अब जैसे वहाँ पे कुछ यूएस में चलते हैं ट्रीटमेंट ऑटिज्म को लेकर के, क्लोरीन डाइऑक्साइड का, जो कि बैन है वर्ल्ड वाइड, बट यूएस में खुद बैन है, उसके बावजूद भी चल रहा है। और उसकी एक कम्युनिटी है जो क्या कहेंगे, मतलब सीक्रेटली काम कर रही है, और कुछ पेरेंट्स हैं जो उसको ज्वाइन करके अपने बच्चों पे काम भी कर रहे हैं, बट वो काफ़ी डेंजरस एक्सपेरिमेंट्स हैं। और उसी की तरीके से बहुत से दूसरे एक्सपेरिमेंट्स हैं। उसी में हम लोग कई बार बात करते हैं स्टेम सेल थेरेपी को लेकर के। हमारे एक थे कोई जानने वाले, उन्होंने अपने बच्चे का कराया था, काफ़ी पैसे खर्च हुए बट कुछ फायदा नहीं हुआ। बाद में कुछ लोगों से मेरा अभी पीछे 6 महीने पहले बात हुआ, तो उन्होंने बताया कि साउथ अमेरिका में पनामा में स्टेम थेरेपी जो है वो काफ़ी फेमस है, क्योंकि उनका तरीका बड़ा डिफरेंट है। उसको लेकर के हम लोग ग्रुप में एक बार डिस्कशन भी कर चुके हैं, और शायद एक है डॉक्टर मोनीश, पेरेंट है हमारे ग्रुप में, उन्होंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया था इस चीज़ को। तो अगर कोई स्टेम सेल थेरेपी या कोई भी थेरेपी या किसी भी तरीके के ट्रीटमेंट को चूज़ करने जाता है, तो मैं यही कहूँगा कि थोड़ा उसके बारे में अच्छे से रिसर्च कर लो। नॉर्मली हमारे पास जब इन्फॉर्मेशन इस तरीके की ट्रीटमेंट्स की आती है, तो सब कुछ अच्छा अच्छा लिखा होता है उसके बारे में, या अच्छा अच्छा बोल रहे होते हैं लोग। बट आप तभी जाओ उस चीज़ के लिए जब आप कुछ लोगों को देख लो पर्सनली कि हाँ उन्होंने इसको यूज़ किया है। मार्केटिंग और ब्रांडिंग को देख के कोई भी सॉल्यूशन चूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, या जिस तरीके से मैंने अभी एक्सप्लोर करना शुरू किया है, तो मुझे समझ में आ रहा है कि एक बहुत बड़ी मार्केट खड़ी हो चुकी है ऑटिज्म ट्रीटमेंट के नाम पे, जिसमें गली गली में थेरेपिस्ट और डॉक्टर्स बैठ गए हैं। और बड़े शहरों में तो जो है उससे ज़्यादा बुरे हाल छोटे शहरों में हो रखा है इस टाइम पे। एनीवे, सो 3 साल 4 महीने का जब ये हुआ, इन अप्रैल 2016, सो इसका एडमिशन के लिए हम लोग देख रहे थे। वैसे तो एज काफ़ी कम थी नर्सरी के लिए भी, क्योंकि नॉर्मली लोग प्रेफर करते हैं कि जब बच्चा 4 साल का हो जाए तो उस टाइम पे डाला जाए, या कम से कम 3.5 साल का तो हो। 3 साल के बच्चे नॉर्मल भी जो होते हैं उनको भी इतना समझ में नहीं आता कि क्या है, किस तरीके से है स्कूल में कैसे मैनेज करना है। अब इसके साथ चैलेंज ये था कि दिसंबर बॉर्न है, तो 3 साल 4 महीने हुए थे, और उस स्कूल ने आई डोंट नो कैसे एडमिशन ले लिया नोएडा में। बट वो आई डोंट नो कि वो सही डिसीजन था या गलत था, लेकिन उसमें 2 साल हमारी ऐसी तैसी हो गई एक तरीके से। होता क्या था कि मॉर्निंग में सवेरे आप लेके पहुंच जाओ स्कूल 9 बजे, टीचर्स बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करते थे। अब इसकी मदर को जाके साथ में बैठना पड़ता था क्लासरूम में, और अब क्लास में इसको पढ़ाई भी करानी है, बाहर इसको अगर वॉशरूम जाना है तो भी मम्मी को लेके जाना है इसको। ऐसा लगता था कि जब बस वो स्कूल में गए जाके बैठ गए, उसके अलावा स्कूल वालों का कुछ नहीं था कि देखो हमने आपको अलाउ कर दिया बैठने को एंड दैट्स इट। क्या पढ़ रहा है क्या नहीं पढ़ रहा, उससे कुछ इंटरेक्शन ही नहीं करना। अब उस समय में हमने और भी स्कूल पता किए, बट नोएडा के अंदर ही, जो कि एक तरीके का मेट्रो सिटी है, वहां पर ही कोई स्कूल नहीं मिला हमें जिसमें इस तरह की चीज़ों को हम मतलब एड्रेस किया जाता हो। और जो स्कूल थे वो बहुत महंगे थे, जैसे स्टेप स्कूल, या मैं भूल रहा हूँ नाम, कुछ जेपी वालों के स्कूल थे, बहुत महंगे स्कूल हैं वो, उतना नहीं अफोर्ड कर सकते थे उस टाइम पे हम लोग। तो वो एक तरीके से वेस्ट भी था। फिर हमने इसको कंटिन्यू भी इसलिए किया, कम से कम स्कूल जाएगा कुछ समझेगा।
कैसे बच्चों के साथ में इंटरेक्ट करना है, कैसे कुछ डिसिप्लिन में रहना है कि क्लास में बैठना है तो बैठना है, प्रेयर वाले टाइम पे जाना है तो प्रेयर करना है, और कुछ उनकी जो एक्टिविटीज होती है बच्चों की, सो सम टाइम वो उसमें पार्टिसिपेट भी करता था, तो दैट मोटिवेटेड मोटिवेटेड अस कि नहीं नहीं वहाँ पे मतलब इतना भी नुकसान नहीं, ठीक है कुछ तो सीखेगा वहाँ जा करके। लेकिन उसके साथ दौड़ बहुत लग जाती थी, सवेरे से लेकर के दोपहर तक पहले स्कूल, एंड देन स्कूल से आप फटाफट लेके आओ उसको घर, 2 बजे तक खाना खिलाओ, और चाहे गर्मी हो चाहे कोई भी मौसम हो, उसी टाइम पे फिर आप उसको लेकर के ओटी में भागो। फिर उसकी 2:30 बजे से, तो कभी 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 तो यूँ होता था कि सीधा स्कूल से थेरेपी में जाते थे, क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई स्टैंडर्ड टाइम तो होता नहीं है थेरेपी का, कि अगर 3 बजे का है तो हर रोज 3 बजे ही होगा, वो चेंज होता रहता है, कभी आज 3 बजे है तो कभी 3:30 बजे है तो कभी 4 बजे है, किसी दिन शाम को 6 बजे है। तो एज पर थेरेपिस्ट अवेलेबिलिटी आपको अपने आप को फ्लेक्सिबल रखना पड़ता था। तो आप समझो कि सवेरे से लेकर के शाम को कई बार 7 8 8:30 बजे तक आप बिजी रहते थे। अब उस बीच में मेरी वाइफ को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, और मेरे लिए ये था कि हाँ, ऑफिस से जैसे ही मुझे टाइम मिलता था मैं निकल के इस चीज़ में इन्वॉल्व होता था। बाकी उसके बाद में फिर इसको घर पे बैठा करके रात को वही सब एक्टिविटीज़ करवाना, वीकेंड पे, वीकेंड्स हमने एक काम किया था कि वीकेंड्स में अपने आप को फ्री रखा था, क्योंकि 5 दिन आप इतना दौड़ते भागते हो कि एग्जॉस्ट हो जाते हो, उसके बाद हिम्मत नहीं रहती। फिर उसी में कुछ थेरेपिस्ट होते हैं जो कहते हैं ग्रुप एक्टिविटीज़ करा लो, ये करा लो, वो करा लो। हमने ग्रुप एक्टिविटीज़ भी कराई, लेकिन बाद में समझ में आया कि ग्रुप एक्टिविटीज़ हर बच्चे के लिए नहीं है। अ, एक अंडरस्टैंडिंग या एक स्टेबिलिटी के बाद ही ये सब चीज़ें काम करती हैं। हमने भी काफ़ी पैसा और टाइम बर्बाद किया इस चीज़ में। उसके बाद हमने डिसाइड किया कि इट्स बेटर कि हम इसको फ्री रखें वीकेंड पे, और वीकेंड पे हम इसको रिलेटिव्स के यहाँ ले जाते थे, 1 2 दिन वहाँ पे रहा, सैटरडे संडे रहा, एंड देन उतने में उसको क्या है कि नए नए लोगों से बात कर ली, आस पड़ोस में बात कर लिया, तो कभी नानी के घर, कभी दादी के घर, कभी किसी और के घर, इस तरीके से चलता रहता था। और कोशिश यही होती थी कि वीकेंड पे तो कम से कम इसको घर पे ना रखें, और वीक डेज पे जो भी टाइम मिलता था थोड़ा बहुत पार्क में घुमा दिया, खिला दिया, वही एक्सरसाइजेज जो रूम में होती थी वो पार्क में करवा दिया इसको। जितना बात कर सकते हैं इसके साथ बात करो, स्पीच के लिए, लैंग्वेज के लिए, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए। अब जैसे बहुत सी सेंसरी एक्सरसाइजेज होती हैं जिसके लिए ये सैंड यूज़ करते हैं या कुछ टेक्सचर्स यूज़ करते हैं, तो उस टाइम पे इतना नहीं मालूम था हमें। इवन मेरे को तो अब जाके ग्रुप में पता लगा कि ये मटेरियल भी होते हैं जिससे आप थेरेपी एक्सरसाइज करा सकते हो। तो हम लोग उसको ले आते थे, मिट्टी में छोड़ देते थे, जैसे अभी आप यहाँ पे फोटो देख रहे होगे। अच्छा, एक चीज़, स्क्रीन आप लोग देख पा रहे हो मेरा? मैंने पूछा नहीं आप लोगों से। हाँ हाँ विजिबल है। अच्छा, ओके। तो जैसे कि इसमें ये गांव में गया था ये, मैं इसको गांव ले जाता था हमेशा, कि जब भी टाइम मिलता था, खास तौर पे मतलब ये विंटर्स में ही, तो वहाँ पे बच्चे मिल जाते थे बहुत सारे खेलने के लिए, तो उनके साथ खेला, इंटरेक्ट किया। इवन ये इसको ओके, वन लैंग्वेज या लैंग्वेज तो एक ही रखी हमेशा, हिंदी रखी, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं था। गांव में जाओ तो एक अलग लैंग्वेज होती है और आस पड़ोस में इंग्लिश मिक्स होती है, तो हम लोगों ने इंग्लिश हिंदी मिक्स रखा, बट परसेंटेज ऑफ हिंदी वाज मोर, क्योंकि कोई सेंस नहीं था इंग्लिश को अननेसेसरी लेके आने का, जब अभी डेवलप ही नहीं हुई है लैंग्वेज और अंडरस्टैंडिंग। तो अभी हमने स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि स्कूल में भी उन्होंने शुरू कर रखा है, थर्ड में पहुंच गया है ये, तो अब समझ सकता है चीज़ों को, तो ये जल्दी सीख भी जाता है, तो अब उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हाँ, ये है कि हाँ, नेचुरल तरीके से जो भी सिखाना है हमने अपनी तरफ से कोशिश की, क्योंकि उस टाइम पे इक्विपमेंट्स वगैरह जो थे इतनी जल्दी मिलते नहीं थे, अमेजोन वगैरह पे ये सारी टूल किट्स वगैरह मिलती नहीं थी, तो जाना पड़ता था यहीं दिल्ली में कुछ एक जगह है जहाँ पे सब इक्विपमेंट्स मिलते हैं। तो इस तरीके से यहाँ तक इसी तरह टाइम कटा, जब ये क्या कहते हैं, नर्सरी, एंड देन पहुंचा ये कहाँ पे, केजी में। अच्छा, उसी बीच में क्या हुआ कि स्पीच को लेकर के एक टाइम का सैचुरेशन पॉइंट आ गया, कि वही चीज़ रिपीट हो रही है, वही एक्टिविटीज़ हो रही हैं। तो एक नॉर्मली, हाँ हाँ, आप लोगों को भी होता होगा, अपने थेरेपिस्ट के ऊपर गुस्सा आता होगा कि यार रोज लेके जाते हैं, इतना टाइम और पैसा वेस्ट करते हैं, करा वही रहा है और हो उसके आगे कुछ नहीं रहा। तो हमारा भी एक टाइम पे हो गया था कि अब बस बहुत हो गया, या तो आपके पास में कुछ है नहीं, या हमारे बच्चे को इससे आगे सीख ही नहीं सकता वो। तो किसी ने हमें बताया कि आप लैंग्वेज थेरेपिस्ट से बात करो।
तो हमारे को समझ में नहीं आया उस टाइम पे कि अब ये क्या चीज़ है। जो अभी हम करा रहे थे वो क्या था। अभी तो हम लोग स्पीच करा रहे थे, तो अब ये नई लैंग्वेज क्या चीज़ आ गई है। तो फिर थोड़ा लॉजिकली कुछ लोगों ने समझाया कि अभी तक आपने इसके साउंड निकलवाए, वर्ड्स बुलवाए, अब इससे आपने सेंटेंस मेकिंग करवानी है। तो इसके लिए आपको लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ेगी, लैंग्वेज थेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। और उस टाइम पे नोएडा में कोई नहीं था लैंग्वेज थेरेपिस्ट के नाम पे, और जो थे रुपेश और यही थे। बट उस टाइम पे थोड़ा सा ये हो गया था कि कुछ हो नहीं रहा इसके आगे, तो क्या करना है। इसी तरह मुश्किल से इनका अपॉइंटमेंट मिला कृष्णा मैम को उस टाइम पे, उन्होंने भी स्टार्ट ही किया था। अच्छा, हमारे केस में एक अच्छी चीज़ थोड़ा सा ये रही शायद, या हम लकी रहे इस मामले में, कि जिन थेरेपिस्ट से हमने शुरू किया वो सारे के सारे उस टाइम पे अपना स्टार्ट ही कर रहे थे, और वो उन्होंने पूरे जी जान लगा करके इसके ऊपर काम किया। क्योंकि जिसके साथ भी हमने शुरू किया, पहले हमारी शुरू में लड़ाई हुई उनके साथ, एक तरीके का कि आप नहीं करा सकते, आप रहने दो। जैसे रूपेश के यहाँ गए तो हमें उनके भाई के ऊपर भरोसा नहीं था, हमें लगा नहीं ये तो मतलब टाइम पास करने के लिए लगा दिया, ऐसे नहीं चलेगा। बट उन्होंने इसके ऊपर बहुत काम किया, बहुत मेहनत की, और वो मेहनत दिखी भी। तो उसके बाद कृष्णा मैम ने भी काफ़ी काम किया, और कृष्णा मैम के पास में करीब हम लोग 1 साल के आसपास गए होंगे। उसके बाद उन्होंने खुद ही मना कर दिया था कि अब इसको लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका उस लेवल पर स्पीच आ गया कि अब इसके आगे हम नहीं सिखा सकते, अब ये खुद सीखेगा अपने आसपास की चीज़ों से। आप इसको ऐसे इन्वायरमेंट में रखो जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग हों, और इससे बातें करें। इसकी इसके नॉर्मली क्या होता है, घरों में भी बड़े लोग बच्चों से इतनी ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करते, लेकिन हम लोगों ने कुछ इस तरह से रखा है इसके साथ में कि ये कुछ भी पूछ रहा है इसको जवाब देना, और इसको आंसर करना उस चीज़ का। एंड अगर ये कुछ पूछ रहा है और गलत तरीके से पूछ रहा है तो इसको करेक्ट करना, कि जैसे मुझे पानी चाहिए, मुझे पानी दे दो, या मैं भी वहाँ जाऊँगा। तो इस चीज़ को ऐसे ना बोल के कुछ 2-3 वर्ड को यूज़ करके बोलता था, दैट मेक्स नो सेंस। तो इसको इवन अभी आज भी हुआ कुछ ऐसा ही, तो इसको बताना पड़ता है कि नहीं, अगर तुमने ये चीज़ बोलनी है तो दिस इज़ द राइट वे, इंस्टेड ऑफ कि ठीक है जो बोल रहा है बोलने दो। और थोड़ा सा इसको ना करेक्ट करना जरूरी है। तो करेक्शन हम लोग कई सालों से करते आ रहे हैं, जिस वजह से काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ है इसका, और वो आज भी करना पड़ रहा है हमें, और अभी पता नहीं कब तक करना पड़ेगा। तो जब ये 4 साढ़े 4 साल का हो गया, उस टाइम तक हम लोग स्कूल भी चल रहा था, ओटी। ओटी, अच्छा, ओटी में हम लोगों ने एक काम किया था कि उज्जवल सर थे, उज्जवल सर के बाद में हम लोग स्विच किए सम्राट सर के पास में। वो नोएडा में ही है, वो भी थेरेपिस्ट। और उसके बाद पूजा मैम के पास। अब हम लोग भी उन्हीं मतलब बहुत से पेरेंट्स होते हैं जो स्विच करते हैं थेरेपिस्ट अपने। आई डोंट नो ये कितना सही है कितना नहीं, बट हम लोगों का उस टाइम पे ये था कि अगर थेरेपिस्ट के पास हम लेके जा रहे हैं और 3 महीने 2 महीने में कुछ हो ही नहीं रहा, तो कोई फायदा नहीं है आगे कंटिन्यू करने का। इट्स बेटर कि फाइंड आउट समवन एल्स और स्टॉप इट। सो दैट्स व्हाई वी स्विच सो मैनी थेरेपिस्ट। बट आज की डेट में अगर आज आप मुझसे पूछे तो मुझे लगता है कि हाँ ठीक है, वो डिसीजन अच्छा था हमारा, क्योंकि अननेसेसरी किसी एक के पास में बैठने से होना कुछ नहीं था, वही चीज़ रिपीट होती रहती है, और पैरेलल में दूसरे इश्यूज खड़े होते रहते हैं, जिस पे अगर हम काम नहीं करते तो आज भी हम थेरेपी करा रहे होते। तो हमारी थेरेपी जब ये 5.5 साल का हुआ, सारी तब तक सारी खत्म हो गई थी उस टाइम तक। और जैसे ही ये पहुंचा क्या नाम है, 5 साल 5.5 साल का हुआ, और इसकी नर्सरी वगैरह सब खत्म हुई, क्लास 1 में आया। उस टाइम पे हम इसको शायद 2 महीने 2.5 महीने लेके गए होंगे थेरेपीज में, और तब तक लैंग्वेज थेरेपी, ओटी, ये सब चीज़ें बंद हो चुकी थी। और उन्होंने, जैसे पूजा मैम थी जिनके पास लास्ट हम लोग लेके जाते थे, एंड देन उन्होंने कहा कि आप इसको स्पोर्ट्स में डालो, क्योंकि अब उनके पास ऐसी कोई एक्सरसाइज नहीं है जो इसको कराई जा सके, चाहे वो वेट को लेके हो, चाहे वो किसी भी चीज़ को लेकर के हो। तो 1 सेकेंड ना, जस्ट अ सेकेंड। या श्योर। हाँ, सो माय डॉटर लाइक यू मेंशन, मतलब हम लोग भी मतलब साउथ दिल्ली में रहते हैं, तो आपने जिन थेरेपिस्ट के नाम लिए, आई बीन टू देम। ओटी इज द ओनली थिंग जिसपे हम कॉन्स्टेंसी नहीं मेंटेन कर पाए व्हेन इट केम टू थेरेपिस्ट। एंड विद इन साउथ दिल्ली मैंने ओटीज का काम देखा, और मैं उनको 2 पोर्शन में डिवाइड कर पाई, कि एक जो टोटली सेंसरी पे काम करते हैं, कि सैंडविच करना बच्चे को,
और फिर बॉल प्रेशर देना एंड अ लॉट ऑफ विल बार्जर प्रोटोकॉल एंड देन देयर इज सम अनदर काइंड ऑफ ओटी मतलब जो मुझे दिखा संतोष सर हैं जैसे वसंत कुंज में शक्ति फाउंडेशन है तो वहां पे वो काफी फंक्शनल चीजें कराते हैं जैसे बॉल एक टप्पे पे लेके फिर कैच कराना और सिजर का यूज कराना तो मैंने दोनों तरह की कराई मेरे को लेकिन कहीं पे कॉम्बिनेशन नहीं मिला अदरवाइज चीजें बहुत स्लो हो जाती हैं सेंसरी से आगे ही नहीं बढ़ पा रहे थे जो आम्रपाली मैम जैसे ओटीज हैं हु वर्क सोली ऑन सेंसरी एंड देन मूव ऑन टू फंक्शनल सो एक पॉइंट इन टाइम के बाद मेरी डॉटर क्योंकि पैसिव ओटी से बोर हो गई मतलब क्यों मुझे लेटाया जा रहा है क्यों बॉल प्रेशर दिया जा रहा है सो व्हाट वर्क्स क्योंकि फंक्शनल में आई कुड सी मतलब मैं जब वो 3 साल की थी तो उसको फंक्शनल कराते थे तो उसको बॉटल्स के ढक्कन खोलने वगैरह आ गए विच वाज अ वेरी सिग्निफिकेंट मोटर अचीवमेंट आई विल से और वो डॉल्स के भी मतलब गले वाले निकाल देती थी क्योंकि उसको टर्न करना आ गया अपने हाथों का यूज करना आ गया सो विच वन इज बेटर कॉम्बिनेशन तो मुझे मिला नहीं मैं 4 ओटी बदल चुकी हूँ पिछले 3 साल में एंड थैंकफुली मतलब ओटी कोई इतना इंडिया में रेकमेंड नहीं करता है मेरा ब्रदर is an OT. He's not a pediatric OT, and he saw that when she was diagnosed that she was sitting in W, and he told me that this is not right, and you immediately see an OT. तो which kind of OT works? क्योंकि OT issues ही हैं अभी भी जो हमें स्टॉप कर रहे हैं एंड काफी अंडरमाइन करते हैं यहाँ पे ओटी की इम्पोर्टेंस एंड एवरीवन रिकमेंड्स अ स्पीच थेरेपिस्ट अ मोमेंट चाइल्ड इज डायग्नोज्ड सो विच वर्कड बेटर क्योंकि बच्चे का स्किल सीखना और कॉन्फिडेंट फील करना बहुत इम्पोर्टेंट है ओके ओके। अब देखो यहाँ पे चीज पता क्या है, जो आप कह रहे हो ना कि एक थेरेपिस्ट एक अप्रोच फॉलो कर रहा है, दूसरा थेरेपिस्ट दूसरी अप्रोच फॉलो कर रहा है, तीसरा तीसरी कर रहा है, इसका मतलब ये है कि दे ऑल आर इंटरेस्टेड इन फॉलोइंग देयर अप्रोच इंस्टेड ऑफ व्हाट एक्चुअली किड इज रिक्वायर्ड। या तो वो ढंग से उसका असेसमेंट नहीं कर रहे हैं, उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि इसकी इसकी नीड्स क्या हैं। अभी तक जितना मुझे समझ में आता है, जब मैंने अपने बच्चों को देखता हूँ तो वो बैठता नहीं था, वो हाइपर एक्टिव है, भाग रहा है यहाँ वहाँ। वो हर वक्त अपना ना हाथ देखता रहता था। जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ पीछे, एक शायद आपने नोटिस किया हो, कुछ पिक्चर्स थी उसकी पुरानी, जैसे ये वाली पिक्चर्स हैं आप देख रहे हो, ये है जब ये 1 साल का हो गया था। अपने हाथ की उंगलियों को देखते रहना, इस पिक्चर में ये अपने हाथ की उंगलियों को टेढ़ा करता रहता था, ये उल्टा होकर के चीज़ों को देखना, ये साइलेंट में कोने में जा करके अपने आप को बैठ बैठ जाना कहीं भी दरवाजे के कोने में, कहीं भी टेबल के पास में, आइसोलेशन में, और देखते रहना अपने आप ये सब चीज़ों को। क्वेश्चन ये है कि ये क्यों हो रही है चीज़ें और इसका सॉल्यूशन क्या है। अब चाहे जो भी अप्रोच है इसकी, जो आप बता रहे हो कि ऐसे वैसे करके, तो अब हम एज ए पेरेंट ये तो बड़ा मुश्किल है कह पाना कि इसकी ये अप्रोच सही है या ये अप्रोच सही है। जिसकी भी अप्रोच काम कर रही है मैं तो उसी को बोलूँगा कि ठीक है, लेकिन उसको ज़्यादा टाइम तक कहना कि पहले 3 महीने इसकी अप्रोच को इवेल्युएट करें फिर 3 महीने उसको करें, तो इसमें तो पूरा साल निकल जाएगा, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो बेस्ट हम तो यही करते थे कि देखो आज की डेट में ये अपने हाथ की उंगलियों को टेढ़ा कर रहा है, आइस मतलब आँख टेढ़ी करके गोल गोल चक्कर लगाता है, इसको कैसे रोकना है। तो वो कहते थे ठीक है हम इसको ये एक्सरसाइज करा रहे हैं और इससे होगा। फिर हम दोबारा दूसरे तीसरे दिन फिर पहुंच जाते थे कि नहीं हुआ अभी भी, कैसे करें इस चीज़ को, या तो ये एक्टिविटी काम, ये तो जो आप बता रहे हो काम नहीं कर रहा। तो एक तरीके से पीछे पड़ना पड़ता था। और आज जब बात होती है वापस से, तो ये लोग खुद भी कहते हैं कि हाँ आप लोग बहुत ज़्यादा मतलब पीछे पड़े रहते थे इन चीज़ों के। अभी मेरे पास शायद राइट आंसर नहीं है जो आपने क्वेश्चन पूछा है, और शायद मैं ना भी दे पाऊँ, क्योंकि अप्रोच डिफरेंट हो सकती है। वो इसलिए है क्योंकि जैसे एक थेरेपिस्ट के पास हमने एक टाइम पे 2 थेरेपिस्ट के पास जा रहे थे। एक थेरेपिस्ट कुछ करा रहा था, दूसरा कुछ करा रहा था, लेकिन इश्यू एक था। तो जिसका काम कर गया फिर हमें समझ में आया कि हाँ, ये शायद, और वैसे भी काम किसका कर गया ये हम कभी कह ही नहीं सकते। हम बस लॉजिकली सोच सकते हैं कि हाँ, इन्होंने लाइट दिखाई, तो इसकी शायद लाइट की नीड्स थी, सेंसरी नीड्स थी। तो ये इसको ले जाते थे 15 मिनट एक डार्क रूम में रख के लाइट जलाते थे,
तो इसकी नीड पूरी हो गई, एंड देन इन्होंने बोला हमें घर में करने के लिए, हमने इसको घर में भी किया कंटिन्यू, और उससे इसकी ये वाला इशू खत्म हो गया। तो इसका मतलब ये पर्सन सही बोल रहा है, इसकी अप्रोच सही है। वही पैरेलल में दूसरा पर्सन क्या कर रहा था, इसके पास एक डिवाइस था, वो उसको कुछ करता था, उसके अंदर प्ले करता था, एंड देन ही आस्क कि ये भी उसके साथ में कुछ करे, वो कराता रहता था, और ये इंटरेस्ट नहीं लेता था उसके अंदर। तो उसका कराना और इसका इंटरेस्ट ना लेना, आउटपुट जीरो निकल रहा था। अब हो सकता है उसकी वो वाली अप्रोच सही हो, मेडिकली प्रूव्ड हो, जो इनके होते हैं, लेकिन अब बड़ा मुश्किल है ये चीज़ कह पाना कि कौन सी अप्रोच सही है। Okay. ओके, सो ऑलराइट, तो हो गया, बस मैं लास्ट में हूँ मैं यहाँ पे कि जैसे इसका स्कूल चालू हुआ और हम लोगों ने थेरेपीज क्लोज कर दी थी जब ये 5.5 years का हुआ था, और उसके बाद में हमें बोला गया कि आप इसको उसमें डालो, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में। तो स्कूल में इसके ये था टाइक्वांडो में, या टाइक्वांडो में था, ये एनरोल हुआ और 2 साल इसने किया। अभी इस साल से इसका ये था कि नहीं, मेरे को नहीं करना टाइक्वांडो, क्योंकि उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह होती है, ये फॉलो नहीं कर पाता था, और थोड़ा सा टीचर्स जो स्पोर्ट्स के हैं वो भी इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। तो अभी थॉट कि इस साल या तो इसको स्केटिंग में डालेंगे या किसी चीज़ में डालेंगे, बट अभी कोविड की वजह से कुछ भी नहीं हो पाया। और बायोमेडिकल ट्रीटमेंट हमने लास्ट ईयर बंद कर दिया था, मेरे ख्याल से स्टार्टिंग में ही हमने क्लोज कर दिया था, एंड डॉक्टर सेड ऑल्सो कि आप लोगों को अगर ज़रूरत है तो पहले जैसे 2 महीने 2.5 महीने में बुलाते थे, मैंने कहा 6 month में आ पाओ। तो हम लोगों ने अपॉइंटमेंट लिया, लेकिन हम लोग लास्ट ईयर ही गए नहीं इसके पास पूरा, और अभी तक नहीं गए, और मेडिसिन भी कोई नहीं ले रहे हैं। तो उससे समझ में आया कि शायद अभी ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अभी हमने सोचा था ऐसा ही कि इसको ख़त्म कर देंगे, होम्योपैथी को, लेकिन होम्योपैथी जैसे ही बंद किया वैसे प्रॉब्लम शुरू हो गई। तो इस वजह से अभी होम्योपैथी चल ही रही है। और या दैट्स इट, यही स्टोरी है इसकी। आप लोग के पास अगर कोई क्वेश्चन है तो बताओ आप लोग। 1 मिनट, कुछ चैट में आए हुए क्वेश्चंस, एक बार मैं इसको देख लेता हूँ, देन हेलो या सर, दर्श ने जो है वन वन वर्ड ना कब मीनिंगफुली स्टार्ट कर दिया था, उसके बाद कब 2 वर्ड और 3 वर्ड फिर सेंटेंस में आया, कब से मतलब आया उसका स्पीच का प्रॉपर? आप कह रहे हो कब से इसका आया? अच्छा, जब हाँ, इसका 1 वर्ड। 1 वर्ड ऐसा था, हाँ जब ये 2 साल 2 महीने का था, तो हमने शुरू किया था स्पीच वाला। और उस टाइम हाँ पे हाँ। इन्होंने, फरवरी चल रहा था, मुझे याद है, सर्दियाँ थी उस टाइम पे इसका शुरू हुआ था, तो साउंड वगैरह नहीं निकाल पाता था ये, तो साउंड को लेकर के काफी फाइट चल रही थी। एंड देन इसका 1 वर्ड, जैसे मैं कहूँगा कि कार, बैट, बॉल, हम्म। ये निकला है करीब 4 से 5 महीने लगे हैं इसको। माने जुलाई में आया होगा, तब तक ये कितने साल का हो गया था, 2.5 साल का हो गया था, हाँ 2.5 साल के आसपास हो गया था इसको, तब इसका 1 वर्ड निकलना शुरू हुआ था। एंड देन यही पानी दे दो, खाना दे दो, ये दे दो, वो दे दो, तो 2 वर्ड मिला करके सेंटेंस बनाने का शुरू हुआ था बेसिक, कि मुझे, अच्छा इसमें ये लोग क्या कराते थे, एबीए जो मिक्स किया हुआ था कि व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू लिव, और ऐसी कुछ एक क्वेश्चन थे जो आजकल कुछ पेरेंट्स थेरेपी ले रहे हैं मेरे ख्याल से रुपेश से, मैंने देखा उनको क्वेश्चन डालते हुए ग्रुप में कि वो ये सिखा रहे हैं, सेम चीज उन्होंने हमारे बच्चे को भी सिखाया था उस टाइम पे। तो कुछ बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, वेयर डू यू लिव, हाउ आर यू, हम्म। ओके। तो अच्छा, ये सेंटेंस होते हैं बड़े बड़े, जैसे आपने पूछा व्हाट इज योर नेम, अब उसको नहीं मालूम कि व्हाट का मतलब क्या, इज का मतलब क्या, योर क्या, नेम क्या, कुछ नहीं मालूम, वो सिर्फ नेम सुन लेता है और रिस्पॉन्ड करेगा आपका बच्चा। अच्छा, उसको यस। प्रॉम्प्ट किया जाता है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें मिक्स हैं, कि आपने क्वेश्चन किया, फिर आप तो आंसर नहीं दे पाया, देन आपने उसको प्रॉम्प्ट किया। अब आपने उसको कैसे प्रॉम्प्ट किया, बोल के प्रॉम्प्ट किया, कुछ दिखा के प्रॉम्प्ट किया, एन नंबर ऑफ वेज हैं प्रॉम्प्ट करने के। तो इस तरीके से चलता था कि मम्मा कहाँ है, तो जैसे बैठे हुए हैं तो टच करके बताना है, ये रही मम्मा। पापा कहाँ है, ये रहे। अच्छा, ये जैसे पिक्चर्स क्लिक करके हम लोग घर से ले आते थे कि ये शर्ट है, या कोई ड्रेस होती थी, इसकी मदर की ड्रेस है, तो ये किसकी ड्रेस है, मम्मा की है। अच्छा ठीक है, ये किसकी है, इसकी है। तो पापा मम्मा ये बुलवाना, वाटर या पानी, जो भी बच्चा कंफर्टेबल हो बोलने में, जो जल्दी बोल जाए। इस टाइम पे ना लैंग्वेज नहीं होती इंपॉर्टेंट, आई मीन टू से लाइक इंग्लिश, हिंदी और वॉट एवर। इस टाइम पे इंपॉर्टेंट ये होता है कि बच्चा
पानी इजीली बोल पाता है या वाटर इजीली बोल पाता है, वट एवर ही कैन, दे गो हेड विद हम्म, दैट। ठीक है। आ, ओके। और सर दूसरी चीज एक और, बायोमेडिकल ट्रीटमेंट जो आपने लिया था उसमें कौन कौन से प्रोटोकॉल्स फॉलो कराए गए थे आपसे, या आपने क्या क्या किया था उसमें, और कौन कौन से टेस्ट कराए थे, फिर क्या उन्होंने असेसमेंट करके क्या डायग्नोसिस किया था डॉक्टर ओके दीपक गुप्ता ओके ने? ओके, बिफोर दैट ये बरखा ने क्वेश्चन किया है कि किस एज में हमने शुरू किया था। अच्छा सॉरी, ओके रीजनिंग है ये। ओके, इस पे भी आते हैं। आप कह रहे हो बायोमेडिकल में क्या क्या टेस्ट करवाए थे? बायोमेडिकल में हमने टेस्ट करवाए थे, सिर्फ फूड इंटॉलरेंस वाला कराया था, और एक दो ऐसी जी। थे छोटे छोटे, कुछ ब्लड को लेकर के, ये क्या होते हैं ऐसी, मतलब कुछ ज्यादा वो नहीं थे, महंगे नहीं थे, ये कहूंगा, नाम नहीं याद आ रहा। उससे पहले हम्म। ये जो नॉर्मली हम सब लोग जो बेवकूफ़ बनते हैं ईईजी के लिए, और ये कि बच्चे का हाँ। ब्रेन सही है, सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा, वो हमें से ऑलमोस्ट सभी लोगों ने करवाया होगा, जिसका मेरे ख्याल से कोई फायदा नहीं हुआ किसी को भी। हम्म। ठीक है। वो हमने भी कराया था। उस बीच में हमें, जब हम लोग रिसर्च कर रहे थे, तो किसी ने कहा कि ऑटिज्म का एक रीज़न ये ग्लूटन भी हो सकता है, क्योंकि वो गट को इम्पैक्ट करता है, और गट इम्पैक्टेड है तो ऑटिज्म होता है। तो उसी को सोचते हुए हमने ग्लेडियन टेस्ट कराया था। वो आईजीजी और समथिंग कुछ होता है, आप लोग सर्च कर लेना, ग्लूटन जी। जानने के लिए जो टेस्ट होता है वो। ग्लूटेन के सीन दोनों के लिए? केसिन का नहीं था, ग्लूटन का था वो, जो हमने कराया था। ओके। और उसमें इसका ठीक है। इसका आया था कुछ 90% प्लस आया था, तो वो बड़ा शॉकिंग था कि इतना एलर्जी इसको वीट के साथ में। तो और ये बात जब थी, यही इसी टाइम पे अक्टूबर नवंबर में चल रहा था 2014 में, जब ये 2 साल का होने वाला था, 1-2 महीने थे बस। तो हमने इसका, और अच्छा ये दूध नहीं पीता था, तो जो नॉर्मल हम लोग हम्म। सैरेलेक वगैरह हो गया, इस तरीके से देते थे। तो दूध हम्म। मुश्किल से इसको पीते हुए 15 दिन हुए थे, और उसका इंटरेस्ट भी आ रहा था। और ऑल ऑफ सडन हमें बंद करना पड़ा कि नहीं तुम नहीं पी सकते दूध, क्योंकि उस टाइम पे ये निकल के आया। तो हमने कहा जब ग्लूटेन पे डालना है तो फिर दूध भी बंद करके देखते हैं। तो वो बंद किया दोनों, तो उससे हमें 1 महीने में कई चेंजेस नजर आए, कि एक तो इसको थोड़ा नींद आने लगी थी, एक तो सोता ही नहीं था, ये रात भर इसका चलता रहता था, या कुछ नहीं होता था तो लूज मोशन ही लगे रहते थे, रात को 2-2 बजे तक बैठ के आप सफाई कर रहे हो। जी। और इस चीज को बाद में दीपक गुप्ता ने भी कहा था कि अगर ये जीएफसीएफ पे है तो इसकी ये डाइट रखो आप। और उस डाइट को हमने बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो किया था। इवन हम लोगों ने ये जो क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक चावल हो गए, क्योंकि आटा तो देना नहीं था, तो ऑर्गेनिक राइस तो नहीं मिलते थे, हम लोग ब्राउन राइस यूज करते थे। ये कहते हैं ब्राउन राइस ज्यादा अच्छा रहता है। और ब्राउन राइस हमने यूज किया है जी। करीब, अभी लास्ट ईयर शायद बंद किया है, या उससे पहले बंद किया है, मतलब 5-5.5 साल तक इसने ब्राउन राइस ही खाया है। नॉर्मल राइस वंस इन अ वाइल, जैसे कभी कहीं बाहर चले गए और कुछ नहीं है ऑप्शन, तो खाया होगा। जी। या ओके, सो नेक्स्ट। और सर दीपक गुप्ता जी, जो आपने प्रोटोकॉल्स फॉलो करवाए थे वो कौन से प्रोटोकॉल्स थे, वो मेरे को थोड़ा सा जानना था प्लीज। प्रोटोकॉल मैं समझा नहीं, प्रोटोकॉल क्या मतलब? मतलब जैसे उन्होंने मुझे, मैं एक बार ही गई हूँ अभी उनके पास, उन्होंने मुझे विटामिन ए प्रोटोकॉल या ग्लूटाथायोन और वो सब का प्रोटोकॉल वो बताया था। स्पीच के लिए अलग प्रोटोकॉल होता है, कुछ ऐसा भी है। और मेरी बेटी का एमएमआर का जो टेस्ट है वो बहुत हाई आया है, 300 वैल्यू आई है, जो कि मैक्सिमम 16 अबव होती है। तो वो कई सारे प्रोटोकॉल है, डिटॉक्स, बॉडी डिटॉक्स प्रोटोकॉल। तो मतलब उन्होंने आपको क्या सजेस्ट किए थे मेडिसिन में, मैं 2 साल बताऊंगा, आप मेरे गए थे मेरे तो? मेरे को उन्होंने बहुत कुछ बताया था, करीब 1-1.5 लाख के टेस्ट बताए थे। और मैंने बोल दिया था कि मेरे बस का नहीं है इतना, आप मुझे बताओ अभी मैं क्या कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा फूड टॉलरेंस टेस्ट कराओ, उससे कम से कम आपको ये पता लगेगा कि डाइट क्या देनी है। और फ्रैंकली मैंने वो डाइट देखा, मुझे समझ में आ गया कि ठीक है, इसको पालक देना है कि नहीं देना, इसको आलू देना है कि नहीं देना। और वो लॉजिकली हम्म। सही भी है। अभी आप अपना और भी अगर टेस्ट कराओ तो आपको भी पता लगेगा कि आपकी बॉडी क्या टॉलरेट कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है, एंड दैट इज मोर देन सफिशिएंट टू टेक डिसीजन कि मेरे को अपने बच्चों को क्या देना है। और सीधी चीज है, आप खुद देखना, कभी आप कुछ बच्चों को ऐसा खिलाते हो कि उसको एकदम लूज मोशन हो जाता है, कभी कुछ खिलाते हो ठीक हो जाता है। तो हमने भी ये सब चीजें ऑब्जर्व की, एंड देन वी जस्ट पुट इट टुगेदर ऑल दीज, कि भैया इसको ये देना है या और ये नहीं देना है, चाहे जो भी हो जाए। मतलब ये टाइम आ गया था कि हम लोग सब्जी भी ऑर्गेनिक ढूंढ के लाते थे,
बहुत महंगी पड़ती थी जी वो। लेकिन एक टाइम का फिर मैं हाँ छोड़ जी दिया, हमने कहा नहीं हो सकता है। अगर आप दिल्ली एनसीआर में रह रहे हो और सोचो ऑर्गेनिक सब्जी पैसे भी दे रहे हो, नहीं मिलती थी एक्चुअल वो सब्जी। जी। तो और सर सप्लीमेंट वगैरह भी कुछ दिए थे साथ में डाइट के आपने या नहीं दी, मतलब कुछ सप्लीमेंट? सप्लीमेंट्स तो वही था जो मेडिसिन थी जो दीपक गुप्ता ने रेफर किया था, वही हमने दिया था। और सप्लीमेंट्स लाइक जैसे भी हम लोग डिस्कस नहीं करते ग्रुप में कि कॉग्नी केयर हो गया, ब्रेन वाइज हो गया, स्पीक ट्विस्ट हो गया, ठीक है, यही सब हम लोग इसको देते थे। हाँ, अब जैसे जीएफ सीएफ फिट था तो इसको कैल्शियम कैल्शियम देते थे हम लोग अलग से, सिरप जो आते हैं, जी जी जी। ठीक ओके। है। और एक्चुअली मेरी बेटी को बचपन से लेके अभी तक कभी लूज मोशन नहीं हुआ, वो हाईली कॉन्स्टिपेटेड रहती है। लास्ट टाइम जो मैं एक बार किया था तो वो मेडिसिन अभी फिनिश हुआ था मेरा, उन्होंने मैग्नीशियम सिट्रेट दिया था, शायद उसकी वजह से उसका पॉटी ठीक आने लगा। लेकिन अभी दवाइयां खत्म हुई हैं, अब उनका अपॉइंटमेंट अभी लिया नहीं है मैंने, तो अभी उसको फिर से हाईली कॉन्स्टिपेटेड हो गई है वो वापस से। मैं तो समझ नहीं पा रही हूँ उसको इतना कॉन्स्टिपेशन रहता है। कॉन्स्टिपेशन के लिए तो शायद जिंक वगैरह, जिंकोविट ऐसी कुछ था, हाँ सर। सिरप था, तो वो दो जी तो जी उससे काफी होता है, क्योंकि इसके साथ तो हमने बहुत झेला है। जिंकोविट वगैरह थी, ऐसी कुछ सिरप था, वो ही देते थे तो ठीक रहता था। एक और आता था, जी। लास्ट लास्ट जू समथिंग कुछ, तो एनीवे अभी याद नहीं आ रहा मुझे, बट ओके। वो सब लेना पड़ता ही था, देन उसी से काफी रिलीफ हुआ था। ओके, एक ओके। क्वेश्चन है कि बायोमेडिकल ट्रीटमेंट क्या सेंसरी के लिए है? तो बायोमेडिकल ट्रीटमेंट ऐसे कोई स्पेसिफिक नहीं है कि ये सेंसरी के लिए क्या है, ये ओवरऑल है। ओवरऑल ऑटिज्म ट्रीटमेंट को लेकर के है कि जैसे सेंसरी को लेकर तो है ही, ऑब्वियसली हाइपर एक्टिविटी कंट्रोल करनी है, या कॉग्निजिबल जो स्किल्स होती हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए होता है, और स्पीच को लेकर के होता है। अब होता क्या है कि ये ओमेगा हो गया, मैग्नीशियम हो गया, फास्फोरस हो गया, बहुत डिफरेंट डिफरेंट जो भी चीज़ें हैं जो बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं मिनरल्स, उसी के लोग सप्लीमेंट्स प्रोवाइड करते हैं। अब इस पे ज़्यादा अच्छा हम में से वो पेरेंट ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं जो थोड़ा सा मेडिकल जिनका बैकग्राउंड है। मैं अपने लेवल पे इतना ही कह सकता हूँ कि बच्चे के शरीर में अगर कोई इस तरीके के मिनरल या प्रोटीन्स की कमी है जो कि उसके स्पीच और दूसरी चीज़ों को इम्पैक्ट कर रही हैं, तो उसको फुलफिल करने के लिए हम लोग एक्सटर्नल सप्लीमेंट्स लेते हैं। वैसे बेस्ट तो ये है कि नेचुरल मिल जाए, बट नेचुरल थोड़ा सा मुश्किल है आज की डेट में मिल पाना, तो दैट्स व्हाई वी गो विद दिस मेडिसिन। अब बायोमेडिकल के साथ में प्रॉब्लम एक और है कि जो लोग दिल्ली एनसीआर में है या नॉर्थ में है टोटल, मैंने तो आज तक दीपक गुप्ता का नाम सुना है, और तो कोई नाम हमने सुना ही नहीं है। और चैलेंज ये है कि अगर दीपक गुप्ता आपको पसंद नहीं है तो फिर कहाँ जाएंगे। और उसके अलावा अगर आप मेडिसिन्स देखें तो इसमें अब तो फिर भी ठीक है, पहले हमें यूएस से मंगानी पड़ती थी, और वो महंगी भी पड़ती हैं, और प्लस उनको मंगाने का चैलेंज अपने आप में ही है। कई बार उसकी जो डिलीवरी कॉस्ट होती है वो मेडिसिन से भी डबल होती है। फिलहाल वो अल्टरनेटिव मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना उन्होंने शुरू कर दिया है, तो या ओके, हेलो। या सर मुझे ये पूछना था, देन वीना मैम ने आपको जो शुरू में मेडिसिन्स बताई थी, क्या वो दीपक सर से डिफरेंट मेडिसिन्स बताई थी? मतलब आपने वो नहीं लिया था तब ट्रीटमेंट कि वो बच्चे को नशा होता है, ये सब होता है। तो सर दीपक सर की मेडिसिन्स ठीक है, उनका कोई साइड इफेक्ट या फिर कुछ ऐसा प्रॉब्लम आती है? मतलब आपसे मेरी एक बार बात हुई थी, आपने कहा था अगर हाइपर हो रहा है तो डोसेज कम कर दो, या कुछ ऐसा हो रहा हाँ, है तो। राइट राइट। अच्छा, दीपक गुप्ता की एक थी, क्या नाम था, कॉग्नी केयर। कॉग्नी केयर 2.5 ml देते थे हम लोग, और उसने बोला था इसको डबल कर दो, क्योंकि हम उसको दिखा के आए। उसने बोला अच्छा इससे फायदा हो रहा है तो इसको डबल कर दो। डबल किया, उससे इसको हाइपर एक्टिविटी बढ़ गई, बिहेवियरल इश्यूज आने लगे। फिर हमने इनको फोन पे बताया कि ये प्रॉब्लम हो रही है अब, तो उन्होंने कहा नहीं, वापस इसको कम कर दो। और सेम ब्रेन वाइज के साथ भी आया था हमें चैलेंज। तो इस तरीके की जब चैलेंजेस आते हैं तो इसमें यही है, तुरंत मेडिसिन को जो डोजेस हैं वो कम कर दो, क्योंकि हर बच्चे की बॉडी उसको अलग तरीके से लेती है, और हो सकता है। साइड इफेक्ट नहीं होता मेडिसिन का? मतलब कोई फ्यूचर में, अभी तो आप शायद बंद कर दिया मेडिसिन, तो आगे फ्यूचर में कोई बच्चे को, जैसे हम एक गोली भी लेते हैं
तो हम हम्म बहुत चीजें सोचते हैं कि उसका साइड इफेक्ट होगा या नहीं होगा। तो बच्चों के ऊपर साइड इफेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा, तो उससे कैसे पता चल सकता है सर? अभी राइट नाउ तो बच्चा प्रॉपर फंक्शन करेगा कि उसके हम्म। अंदर मेडिसिन जा रही है, तो आगे जाके सर कुछ ऐसा हो सकता है या नहीं? आपको क्या लगा है? देखिए, मैं इस पे ना ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकता। अगेन, मेरा कोई मेडिकल बैकग्राउंड नहीं है और इस पे मैं लॉजिकली भी सोच नहीं सकता। लेकिन हाँ, इतना है जितना अभी तक समझ में आया है, तो अभी तो दिख नहीं रहा ऐसा कोई। अगर हमें 1.5 साल तो हो ही चुके हैं बंद किए हुए मेडिसिन, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम लग नहीं रही है। और जो भी है, ये मेडिसिन क्या करती हैं, आपके इम्यूनिटी को और हार्मोन सिस्टम को इम्पैक्ट करती हैं, और जिसको रिकवर होने में काफ़ी समय लग जाता है। शायद बच्चों की स्ट्रांग होती है, या दे इजीली रिकवर्ड कंपेयर टू हम लोगों के। अभी तो फिलहाल ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। और जो मैंने वीना कालरा का जो मेडिसिन बताया था, उनका तो इमीडिएट नज़र आता था कि ये साइड इफेक्ट करेगी, और आप उसको जाके गूगल पे भी आप पढ़ो तो उसके बारे में काफ़ी मिल जाता था। तो जिस वजह से हम लोगों ने उनको बिल्कुल ट्राई नहीं किया। हाँ, बीच में अभी क्या हुआ था, लास्ट ईयर या उससे थोड़ा सा पहले हम लोग गए थे वीना कालरा के पास में, क्योंकि हुआ क्या था कि दीपक गुप्ता का भी हमें समझ में नहीं आ रहा था कि अब इससे भी कुछ हो नहीं रहा। क्योंकि मेरे को लगता है हर किसी का एक सैचुरेशन पॉइंट होता है, चाहे वो थेरेपिस्ट हो चाहे वो डॉक्टर हो, कि अब इसके आगे उसको भी नहीं मालूम कि क्या मेडिसिन देनी है इसको नॉर्मल करने के लिए। तो वीना कालरा ने कुछ मेडिसिन बोली, बट अगेन उनकी मेडिसिन भी सेम थी जो दीपक गुप्ता रेफर कर रहे थे। बस हो क्या रहा था, वो दवाई का नाम अलग था। जैसे कि ब्रेन वाइज था तो इनके में उसका नाम कुछ और था, जबकि अंदर के जो केमिकल्स होते थे वो सब चीज़ें वही होती थी, सेम होती थी। थोड़ा बहुत डिफरेंस होता था। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रमोद जी, हाँ जी। मनीदीपा, हाँ हाँ, बताइए। ये हाँ, अभी भी आप क्या GFCA फॉलो करे हो या यू हैव स्टॉप्ड इट? नहीं नहीं, ये स्टॉप कर दिया हमने। ये लास्ट ईयर अप्रैल से मेरे ख्याल से बंद कर रखा है हम लोगों ने। तब से इसको दूध और रोटी वगैरह जो है ना, ये हाँ हाँ, तब से चल रहा है, कंटिन्यू है। ओके। और एक क्वेश्चन है कि ये आप जैसे ये ब्रेन वाइज या कॉग्निकेयर से मतलब कुछ इम्प्रूवमेंट स्पेसिफिक, मतलब कुछ रिमार्केबल इम्प्रूवमेंट हुई थी? हाँ, मतलब शुरू में काफ़ी अच्छा लगा था हमें ब्रेन वाइज और कॉग्नी केयर से। एंड इवन हमने तो शायद 1.5 साल चलाया था इसको। 1.5 साल हमने यूज़ किया था, तो फ़ायदा हुआ था। अच्छा, हमारी एक टाइम पे दवाई बहुत ज़्यादा हो गई थी, करीब 5-6 दवाई हो गई थी, जिसमें कि मतलब आप समझो, एक तो आपको पूरा ला के रखना पड़ता था, याद रखना पड़ता था क्या क्या दे रहे हैं। जैसे स्पीक ट्विस्ट थी, जो कि स्पीच में काफ़ी हेल्प किया उसने। दूसरी थी फोकस मेट ने भी काफ़ी हेल्प किया। और ये दोनों दवाई हमें ना बाहर से मंगानी पड़ती थी। इसके अलावा स्पीच बीच, ट्विस्ट, हाँ। हाँ हाँ, न्यूट न्यूट ऐसी कुछ और भी था, अभी याद नहीं आ रहा मुझे। मैं अपनी वाइफ से चेक कर रहा हूँ क्या नाम था। न्यूट्री न्यूट्री कुछ ऐसे करके था। तो वो दवाइयाँ जो थी वो 2-2 3-3 महीने तक ही चली। मे बी उसके बाद शायद जरूरत नहीं थी उसकी। तो यही मेडिसिन हम लोगों ने लिया था बस। ओके। बट अदर जैसे वो कुछ विटामिन सप्लीमेंट्स होते हैं ना, जैसे सुपर न्यूथेरा, ये सब भी आप यूज किए थे? या जैसे फिश ऑयल हो गई, जब भी जैसे अल्टीमेट ओमेगा विच पीपल आर। सुपर न्यूथेरा यूज किया था हमने, मुझे याद आ रहा है यूज किया था। कॉन्स्टिपेशन के लिए था वो शायद, या ऐसी मतलब बहुत सारी चीजों में था। लेट मी यूजिंग चेक। नाउअडेज, ये सब भी आप यूज किए थे? कौन सी? ये जैसे अल्टीमेट ओमेगा हो गए नॉर्डिक का, या सुपर न्यूथेरा एक विटामिन सुपर सप्लीमेंट सुपर है, ये भी न्यूथेरा इम्पोर्ट। सुपर न्यूथेरा तो यूज किया था, बट ये जो नॉर्डिक वाला बोल रहे हो ना, ये नहीं यूज किया। जो ये तो फिश ऑयल होती है ना नॉर्डिक का, हाँ, जो नेमचेक प्रोटोकॉल में यूज होती है, ये आपका, वो भी आप यूज किए थे? नहीं नहीं, देखो, नेम चेक प्रोटोकॉल तो मैं बोलूँ मैंने अभी सुना है कुछ दिन पहले, जब से ये इस ग्रुप में अच्छा, मैं देख रहा हूँ। हमारे मतलब उस टाइम पे तो मैंने सुना ही नहीं था इसके बारे में। तो वी वर फुली फॉलोइंग ओके। बायोमेडिकल, और उसमें सुपर न्यूथेरा वगैरह था उस टाइम पे। सुपर न्यूथेरा, तो सुपर न्यूथेरा से आपको कुछ इम्प्रूवमेंट हुई थी क्या? कॉन्स्टिपेशन में काफी हेल्प किया था उस टाइम पे इसने, सुपर न्यूथेरा ने। अच्छा, ओके। क्योंकि भाई मैं बताया ना कि पूरी जर्नी में मैक्सिमम
इशू तो इसके पेट के साथ में ही था कि क्या बताऊं मैं सबसे मतलब जो कहेंगे दर्दनाक कि हमेशा कहीं बाहर भी लेके जाना हो तो चैलेंज कि अरे अभी वहां पे जाओ फिर टॉयलेट ढूंढो, ये सब बहुत बहुत हाँ चैलेंजेस होते थे उस टाइम पे। बट आप जैसे बोल रहे हो ना ये जो स्पीक ट्विस्ट, जैसे स्पीच तो आ गया मैंने, डिड इट हेल्प इन लैंग्वेज? दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, दैट सपोज इफ अ चाइल्ड हैज स्पीच बट उसका लैंग्वेज में डिलेज है या सेंटेंस फ्रेमिंग में प्रॉब्लम है, देन will those particular medicines help or it will help only in developing the speech part? देखो मैं ऐसे कह नहीं सकता कि करेगा नहीं करेगा, क्योंकि बट इतना जरूर है कि हाँ जब ये मेडिसिन हम लोग दे रहे थे तो उस टाइम पे ही हमने लैंग्वेज शुरू कर दी थी, तो हो सकता है ओके इसने हेल्प किया हो उस टाइम पे। क्योंकि जो मैंने अच्छा आपको बताया अच्छा ना, जो अभी तक में कि जिस तरीके से हम लोग चल रहे थे, हमने स्टार्टिंग किया थेरेपीज देना, बायोमेडिकल, फटाफट को हम लोग मतलब फास्ट मोड में थे एक तरीके से कि हाँ हाँ टाइम वेस्ट नहीं करना, अगर इस चीज से फायदा नहीं हो रहा देन स्विच स्विच करो इसको तुरंत का तुरंत। सर सर कि ये इश्यूज हेलो दोबारा तो नहीं आते, मतलब दोबारा इश्यूज तो नहीं आते, ऐसा किसी ने कहा है आपको, किसी थेरेपिस्ट ने या कुछ भी है? जब जैसे अब आप सब कुछ बंद कर रहे हो तो हम्म, ऐसा तो नहीं है कि लाइफ में दोबारा इश्यूज आ जाएंगे? अरे ऐसा मत बोलो। नहीं हमारी ये चीज है हेलो कि या हमें भी हेलो डर लगता है कि एक बार जो चीज ठीक हो जाती है वो दोबारा ना आए। नहीं 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 नहीं, तो देखो वो आपकी बात सही है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमने भी नोटिस की है। फॉर एग्जांपल रिपीटेशन बिहेवियर एक ऐसा है जो कि ना जिसने बहुत परेशान किया हमको कि किसी भी चीज में रिपीटेशन, चाहे वो बात स्पीच में या लैंग्वेज में हो कि ये किसका है, ये किसका है, ये किसका है, बताने के बावजूद भी 10 बार पूछना किसका है, क्या है, या मैं जैसे कहीं जाना है तो क्या हम जाएंगे, क्या आज हम जाएंगे, जबकि बता दिया है कि हम जाएंगे फिर भी पूछते रहना है। अब ये चीज क्या होती थी, कंट्रोल हो जाती थी और उसके बाद फिर शुरू हो जाता था। तो हेलो जी बिल्कुल हाँ, सेम इशू मेरे बच्चे के साथ है, वो भी 10 बार 20 बार पूछता रहता है ये क्या है ये क्या है, उसको पता होता है फिर हाँ राइट। तो ये सही इसमें बात है तो इस ये। ये रिपीटेटिव बिहेवियर होता है हाँ जो ना टाइम लगता है। अब हम क्या करते थे, जब हमने सारे मेडिसिन बंद कर दिया था, अभी तो चलो ठीक है कंट्रोल है, लेकिन पीछे 6 महीने तक पहले तक था ये बिहेवियर। तो हम लोग होम्योपैथी वाले डॉक्टर को बोलते थे कि ये किसी तरह से आप बंद करवा दो, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि आप बाहर गए बच्चों के साथ खेल रहे हो, ये तेरा है, ये तेरा है, या फिर आपका नाम क्या है, अरे वो बता चुका है फिर भी पूछने का कि भाई आपका नाम क्या है। अब वो क्या होता है, इरिटेट हो जाता है बच्चा, फिर वो आपको सोशल वाला इशू आना शुरू हो जाता है। तो हम लोग क्या करते थे कि जैसे मैं इसको लेके जाता था, अब उसने बता दिया तो मैं कवर करने की कोशिश करता था इसको, अरे बता तो दिया उसने, अपना नाम क्यों पूछ रहे हो बार बार, यही तो नाम है इसका। काइंड ऑफ तो आपको खुद कवर। फिर ऐसा करना पड़ता है, सच में सर करना आप पड़ता ठीक बोल रहे हो। Yeah, ये Pramoji, I also have a हेलो query. Yeah, hello. हाँ जी, हाँ जी। Can you hear me? या Yeah, good evening. Hi. Okay, I also have a query regarding my son. He has recently turned 6 in June only. अभी उसके केस में क्या हो रहा है, जैसे मैं अभी पूरा कॉन्वर्जेशन सुन रही हूँ आपका, सब ब्रेन वाइज की बात हो रही है, कॉग्निकेयर की बात हो रही है, स्पीक ट्विस्ट की बात हो रही है। अभी इस लॉकडाउन में मैंने क्या ऑब्जर्व किया उसको, बिकॉज वी आर नॉट गोइंग फॉर एनी थेरेपीज और एनीथिंग, और कोई मेरे घर भी नहीं आ रहा है थेरेपी के लिए, वी आर कम्प्लीटली लॉक्ड एट होम एंड आई एम पर्सनली वर्किंग ऑन हिम। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे फोकस में भी कोई कमी नहीं है, जब काम करने बैठता है तो बहुत अच्छा काम करता है। एंड हेलो हाँ जी, हाँ जी। हेलो हाँ, मेमोरी है, मुझे मेमोरी में भी कोई कमी नहीं लग रही है उसके। मुझे एकेडमिक्स में पिछले 3 महीने जब से ये लॉकडाउन हुआ है, ही हैज डन रिमार्केबल इम्प्रूवमेंट। मतलब 3 महीने पहले ये था कि एबीसीडी नहीं लिख पा रहे थे ठीक से, और 3 महीने में ये चेंज हो गया कि मैथ्स में एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, इंग्लिश में वर्ड्स कर रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, हिंदी में जो पूरी कथा सीख ली है, 4 शब्दों के 4 वर्ड्स के वो भी लिख रहे हैं। बट इशू मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, जैसे अगर मैं फोकस, अब इन चीजों से लगता है कि हाँ फोकस भी है, दिमाग तो है बंदे के पास, दिमाग नहीं होगा तो इतनी जल्दी पिक नहीं करेगा। तो दिक्कत कहाँ है? मेरे को एक ही दिक्कत आ रही है अभी, ही डजंट वांट टू सिट एट वन प्लेस। बस उसको हर समय उसको ही इज ऑब्सेस्ड विद राउंड ऑब्जेक्ट्स, तो पंखा पंखा देखते रहना है। या हमारे जैसे वी लिव इन अ फ्लैट, तो हमारी छत थोड़ी नीची होती है, काउंटर्स पे चढ़ के चलते हुए पंखे को हाथ लगाना है, या कोई भी ऑब्जेक्ट जाकर उससे लगा देना है। वॉशिंग मशीन के ऊपर चढ़ के जो है
खिड़की को छेड़ना है, बस इन ये चीजें हैं। अदरवाइज अगर मैं इनको हटा दूं कि अगर वो एक जगह बैठ जाए तो ही इज एज गुड एज माई एल्डर वन। बट आई डोंट नो इन व्हाट कैटेगरी ऑफ प्रॉब्लम इज दिस। मेरे को ऐसा लगता है ऑटिज्म, मैं अभी सुन रही थी सारा कुछ आप लोगों के, मुझे ये कभी इश्यूज बाय गॉड्स ग्रेस आए ही नहीं कि पेट, हाँ ही वाज लिटिल कॉन्स्टिपेटेड व्हेन ही वाज वेरी यंग, मगर वो बहुत जल्दी से कवर अप हो गया था, हमने उसका लिक्विड बढ़ाया जैसे कुछ और चीजों पे ध्यान दिया, हमें वो इश्यूज कभी आए ही नहीं कि रात को नहीं सो रहा है या डिस्टर्ब स्लीप है या फिजिकली उसको कोई इशू रहा है या उसको बहुत सिवियर कॉन्स्टिपेशन, सिवियर लूज मोशन। वी नेवर एवर हैड दीज इश्यूज। हमारा इशू यही रहा शुरू से कि बस वो जो राउंड ऑब्जेक्ट, स्पीच डिलेड था, अब स्पीच भी है लेकिन अपनी मर्जी से बोलेंगे, कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, जैसे लैंग्वेज भी आ रही है जब। देखिए जो आप बता रहे हैं ना, ये कि टिक के नहीं बैठना, ये तो फिर वही है हाइपर एक्टिव जो हम लोग बात करते हैं, हाँ ADHD की बात हाँ करते हैं कि अटेंशन डेफिशिएंट। तो अब आप बता रहे ओके हैं अटेंशन का तो प्रॉब्लम नहीं है कि हाँ आपने पढ़ाया तो पढ़ लिया, अब ये है कि हाँ हाँ। हाइपर एक्टिव है कि भैया बैठना ही नहीं टिक के कहीं पे भी, उछल कूद मचाते मुझे रहना ऐसा लगता है कई बार ना कि जान पूछ के भी शायद करता है वो मुझे इरिटेट करने के लिए, मे बी, मतलब मुझे ऐसा भी फील होता है कि लुक्स एट मी दैट ओके आराम से बैठी है, अब उसको इरिटेट करना है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि मे बी इज मोर मैनिपुलेटिव। आई डोंट नो, मतलब ये डिजीज है या ये, सॉरी नॉट अ डिजीज, इट्स अ कंडीशन, और ही इज डूइंग इट डेलिबरेटली जस्ट आउट ऑफ हिज नॉटीनेस एंड बिकॉज ही इज देखो अ स्मॉल चाइल्ड। मतलब अभी कितने साल का बताया आपने, कितने साल का है ये? अभी 6 साल का हुआ है जून में। 6 साल का हुआ है ना, तो ठीक है, हाँ जी। थोड़ा थोड़ा अगर बाकी इश्यूज नहीं है, बाकी चीजें सही चल रही है ना, तो ये चीज ठीक हो जाएगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि अब ऐसे कहने के लिए तो आजकल ये मुझे ताने मारता है इन चीजों को लेकर के ओके। तो अब वो हमें लगता है कि ये क्या मतलब ऐसे कैसे बोल गया, तो ठीक है, अब अच्छा भी लगता है कि हाँ चल ठीक है, बच्चा है, बच्चे इस तरह की चीजें बोल देते हैं। लेकिन अब जैसा आप बता रहे हो भागना दौड़ना ये सब करना, तो अभी एक ये भी है ना कि घर के अंदर बैठे हुए सवेरे शाम तक कुछ करने के लिए है ही नहीं, कहीं जा नहीं सकते, तो या तो ऐसे तो मैंने अपने बच्चों को, मतलब वी हैव ट्राइड टू मेंटेन अ वेरी हेल्दी एटमॉस्फेयर इन द हाउस फ्रॉम डे वन, बिकॉज ये चीज हमने फोर्स ही कर ली थी कि बाहर तो निकल नहीं सकते। मेरा जो एक्चुअली बड़ा वाला बेटा है ना, ही इज अ लिवर ट्रांसप्लांट पेशेंट, या तो राइट उसकी वजह से हम लोग ज्यादा हो रहते हैं कि नाम खुद जा रहे हैं, नाम बुला रहे हैं, और बच्चों को बिल्कुल भी नहीं निकाला है। तो वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट टू मेंटेन अ वेरी हेल्दी एंड अ जोवियल एटमॉस्फेयर इन द हाउस। वो इशू नहीं है, मैं अपने घर में भी ना इंडोर एक्टिविटीज बहुत करवाती हूँ बच्चों को, मतलब लॉट ऑफ एक्सरसाइजेज, योगा, बास्केटबॉल, जैसे वो मेकशिफ्ट बास्केटबॉल होता है, वो सब चीजें मैं कुछ ना कुछ आई ट्राई। तो वो मुझे लगता है कि मन लगने वाली बात, वो इसमें नहीं आ रहा है कि मन नहीं लग रहा है। नहीं, वो अटेंशन का है, बस आई, कि हाँ एक्टिविटी का है, आप इस पे देखो, ओटी वाले से बात करके, या अगर आप होम्योपैथी या कुछ ले रहे हो, दैट प्रोबेबली कैन हेल्प यू। ठीक है, बाकी हम इस चीज के ऊपर सेपरेटली डिस्कस कर लेंगे इफ रिक्वायर, ओके। है ना। अभी कुछ टाइम भी हो गया एक्चुअली, कुछ पेरेंट्स के कुछ प्रमोद जी मेरा एक क्वेश्चन। हाँ जी, हेलो हाँ जी, हाँ जी, कौन? प्रमोद जी मेरा एक क्वेश्चन है, रूमी रूमी है। अच्छा ठीक है, हाँ बताइए रूमी। हाँ सर, आपने जैसे अभी बताया कि होम्योपैथी मेडिसिन तो आपने बंद की तो आपको इश्यूज आने शुरू हो गए फिर से, हाँ राइट। तो राइट, तो आपने डॉक्टर से डिस्कस किया कभी कि कब कब तक आपको मेडिसिन देनी होगी इसको? अब देखो इस तरीके ये वैसे वैलिड क्वेश्चन है आपका, बट मेरे दिमाग में कभी आया नहीं इसलिए नहीं आया क्योंकि इसमें मुझे कोई साइड इफेक्ट होता हुआ नजर नहीं आया, और मुझे ऐसा लगा कि जो इश्यूज हैं उनसे डील करने में मुझे हेल्प हो रही है, और ये ऐसे इश्यूज हैं जो कि एज के साथ साथ आ रहे हैं और जा रहे हैं। ठीक है, ओके। जैसे मान लीजिए जब तक स्पीच नहीं थी तो ये था कि किसी तरह स्पीच आ जाए, हाइपर एक्टिविटी कंट्रोल हो जाए, पेट इसका ठीक हो जाए, तो वो ठीक हो गया। अब उसके आगे के इश्यूज, फिर उसके आगे के इश्यूज, तो जिस तरीके के इश्यूज आ रहे हैं उस तरीके की बातें की उनसे, मतलब डिस्कस किया जाता है, एंड देन वो उस तरीके की मेडिसिन देते हैं। जैसे इस बार मेडिसिन थोड़ा सा डिफरेंट आई है हमारे, क्योंकि हमारे इश्यूज डिफरेंट है। तो अब ये है कि जब कभी ऐसा लगता है कि बच्चा कब तक मेडिसिन खाएगा या कब तक मेडिसिन के साथ, ऐसा ना हो कि कभी मतलब पूरी तरह मेडिसिन पे ही डिपेंडेंट है, और मेडिसिन मान लो सपोज राइट, तरीके से बंद हो गई है तो अभी कभी भी। हाँ, अभी अभी तो देखिए होम्योपैथी को लेकर के इसलिए मैं ज्यादा वो नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें जितना मैंने सुना है, अभी यहाँ पे ग्रुप में हमारे बहुत से पेरेंट्स हैं जो अच्छा जानते हैं इस बारे में कि इसके क्या साइड इफेक्ट हैं। अभी तक कोई साइड इफेक्ट ना तो मैंने सुना है, ना ही कहीं देखा है।
हाँ, अगर कुछ होगा और मुझे पता लगता है तो डेफिनेटली मैं भी सोचूंगा इस बारे में कि हाँ कब तक करना है। बट मैं अभी जैसे लास्ट टाइम हमारा डॉक्टर से डिस्कशन हुआ था, ही सेड कि जो इसके इश्यूज हैं पहले से काफी फिक्स हुए हैं और ये काफी मतलब ठीक है, जैसा हम लोग शुरू में लेके गए थे और जो बच्चे इस एज में आ रहे हैं अभी, तो होपफुली जैसे ये सारे इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे उस टाइम तक मेडिसिन खत्म हो जाएंगी। मैं मान के चलता हूँ कि शायद मुझे अभी 1-2 साल और खिलाना पड़े, उसके बाद शायद जरूरत ना पड़े, तब तक वो सब चीजें सॉल्व हो जाए। क्योंकि ये वो एज होती है ना 10 साल तक की जिसमें आपकी बॉडी डेवलप हो रही होती है। ठीक है, तो जो भी होना है हीलिंग करनी है तो ये मेडिसिन हो सकता है उसको हील कर रही हो। तो आओ टाइम के साथ स्टेबल हो जाए चीजें। राइट राइट ओके, ओके ये किस ओके, थैंक यू। ऑलराइट। सर मैंने पूछा है कि जैसे आपने बोला था मेडिसिन गुप्ता से ले रहे हैं, तो जैसे ये रिपीट करती रहती है, राइम्स हो गया या इसी रात को सोते वक्त रिपीट करती रहती है और गोल गोल घूमती रहती है कि मैं एंगेज करने की कोशिश करती हूँ कि इसको थोड़ा इसका ध्यान भटकाऊं कि गोल गोल ये ना घूमे, पर फिर भी घूमती है और आंखों देखना शुरू हो जाती है। तो ओटी के अलावा अगर मेडिसिन दीपक गुप्ता से ले तो वो सब भी रिजॉल्व हो जाएंगी चीजें? देखो ये जो है ना थोड़ा इसकी ना साइंस को समझना पड़ेगा अपने को कि ये है क्या चीज, ये बायोमेडिकल, ये दवाइयाँ और ये थेरेपीज है क्या। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पे कि जैसे एग्जाम्पल कि के मैं लिए ना 1.5 साल से थेरेपी करा रही हूँ, तो मतलब ये चीजें बिल्कुल भी ठीक नहीं हुई है, गोल घूमने वाली। और अब मैं आपको बताती हूँ कि जैसे मैं इसको थेरेपी सेंटर लेके जा रही होती हूँ, मतलब जगह के कोई प्रॉब्लम, किसी भी रास्ते से मैं ले जाऊं वो कोई इशू नहीं है, पर रेड लाइट जाती है, ग्रीन लाइट से रेड लाइट हो जाती है तो हम रुक जाते हैं गाड़ी, चिल्लाना शुरू कर देती है गाड़ी के अंदर, हेड बैंग करना शुरू हो जाती है कि रेड लाइट क्यों हो गई, मतलब ये ऐसी चीजें करने लग जाती है। और माइंड जीएफ डाइट से अब ये हुआ है कि माइंड बहुत शार्प होता है। मतलब आपको मैं ये बताऊं कि अगर मैं इसको कोई चीज सिखाती हूँ, नेक्स्ट डे मैं इसको पूछती हूँ ना तो ये जवाब दे देती है। मैं खुद हैरान होती हूँ कि 2 बारी बताने पे इसको कैसे आ गई है ये चीज। और पर तो ये चीजें हैं, गोल घूमना या स्क्विंट करके देखना, चीजें ना मानना मेरी, मैं बिठा के इसको काम कराती हूँ तो ये लाती है, शाउट करती है बहुत ज्यादा और रोती है। और जीएफ डाइट से क्या होता है कि अभी ये स्क्रीन बहुत ज्यादा आ रही है, या इसका हो सकता है नाटक भी कि इसको नहीं करना, इसलिए मुझे 24 घंटे बोलती रहती है कि मुझे सुला दो, मुझे सुला दो। तो मेरे को ये पूछना था क्योंकि अभी मैंने कंसल्ट करना है से, तो आप मतलब मैं ओटी किसके के लिए, अलावा अगर मैं उनको कंसल्ट करूँ तो नहीं आप किसको कंसल्ट करने की बात कर रहे हो, बायोमेडिकल को या ओटी को? यस बायोमेडिकल। हाँ बात करके देख लो उनसे, और मतलब कुछ तो इम्पैक्ट होगा ही इन सब चीज़ों का, क्योंकि देखो अंदर बॉडी के केमिकल्स हैं, ये सब चीज़ें हैं जो उसके अंदर अर्ज पैदा कर रही है जिस वजह से वो ऐसा कर रही है। और कुछ चीज़ें अंदर से चलती हैं, कुछ चीज़ें बाहर से चलती हैं, कुछ चीज़ें जैसे कहते हैं ना सेंसरी नीड्स होती हैं, जो सेंस को जरूरत होती है। अब सेंस का मतलब क्या है, जो एक्सटर्नल चीज़ें आपके आसपास हो रही हैं और जो आपके सेंसेस उसको फील कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब उसके लिए तो आपने ओटी करा दिया, बट कुछ चीज़ें हो सकता है इंटरनल हो। ठीक है, अब उस चीज़ के लिए तो यही मेडिसिन और सप्लीमेंट्स ही हैं। अब उसके बारे में ज़्यादा बेहतर यही लोग बता पाएंगे, चाहे डॉक्टर दीपक गुप्ता हो गए या चाहिए होम्योपैथिक हो, जहाँ से ঘুমোচ্ছে আমি बता ডাকতে रहे हैं होम्योपैथिक, जो आगरा वाले जो आपने बताए थे। আমি ওরই শুনছি। ओके, ऐसा करें, ऑलरेडी ना टाइम 6:15 हो गए हैं, हम लोग 1 आवर क्रॉस कर चुके हैं। तो अगर आपके ऐसे कुछ क्वेश्चन हैं या तो डायरेक्टली हम लोग ग्रुप में डिस्कस कर लेते हैं, क्या कहते हो आप? ठीक है, I think it's a better idea to discuss all these queries in the group. तो उसमें common query तो solve हो जाती हैं सबकी। राइट राइट राइट, बिकॉज अभी हम लोग ना रिपीटेडली वही वाली बातें कर रहे हैं, बायोमेडिकल। मुझे लग रहा है कि काफी क्वेरीज ऐसी हैं जो लोग पूछ रहे हैं जो मेरी भी हैं, तो मुझे लग रहा है बेटर वी डिस्कस इट इन द ग्रुप। राइट राइट हेलो Maybe we can take a topic, Pramod ji, maybe we can take one topic, जैसे homeopathy. Let us discuss it for 1 week. Then maybe next week we can take a biomedical. या Maybe next hello. week OT, that ways. या श्योर, समवन इज आस्किंग समथिंग। हेलो प्रमोद जी। हाँ जी, हाँ प्रमोद जी, प्रियंका है। प्रमोद जी, मैंने थोड़ा लेट मीटिंग ज्वाइन किया था तो मुझे पता नहीं कि मे बी आपने इसका आंसर दे दिया है।
तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे मेरा बच्चा अभी 3.9 का है, तो वो अभी स्पीच, मुझे लिटरली अभी ये नहीं पता थी कि जो बच्चे रिपीट करते हैं या क्या करते हैं वो भी स्पीच, मतलब उसे कहा जाता है कि स्पीच तो है इसमें, ये मुझे अभी पता चला। अदरवाइज मैं सोचती थी मेरा बच्चा नॉन वर्बल है। तो वो सब कुछ बोलता है, जो मैं कहती हूँ सारा कुछ बोलता है। अब थोड़ी थोड़ी बातें भी, इनफैक्ट पानी वगैरह मांगने लगा। मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब कि ये अब इसके आगे आपने क्या किया था, जिससे क्योंकि आपने 1-2 बार कहा कि वो 4 ईयर का हो गया था, आपका बेटा बोलने लगा था, मतलब स्टार्ट किया था। साउंड साउंड तो इसमें शुरू से थी, लेकिन मुझे ये बोलना है कि ये फिर आपने आगे क्या किया था? क्या ऐसा करते थे जो जिससे कि इसने आगे बोल, मैं कोई मेडिसिन नहीं लेती सिवाय होम्योपैथ के, तो मुझे अभी इसमें इस बारे में कुछ नहीं पूछना। मुझे सिर्फ यही पूछना है कि कैसे कैसे आगे बढ़ाया था इस चीज को आपने? इसका ये है कि जैसे आप कह रहे हो आपका बच्चा 2 वर्ड या 3 वर्ड यूज करके सेंटेंस फ्रेम कर ले रहा है, जो तो जो जी हाँ, जी हाँ, जो कहो वो बोल लेता है और थोड़ा थोड़ा समझता भी है। चलो चलो, अब आजकल बोलने लगा है चलो, जैसे हम बोलते थे ना कि चलो चलते हैं, तो आजकल वो समझ गया है कि चलो मतलब चलना है। तो कहता है चलो चलो चलो, ऐसे ऐसे करके बोलने लगा, मतलब थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है वो। तो इसको इसको चाहिए लैंग्वेज के ऊपर काम करने की जरूरत है, जहाँ पे इसको आह, स्टोरी फ्रेम कराना या सेंटेंस मेकिंग करने पे डे टू डे जो रूटीन में हम लोग चीजें करते हैं उसके ऊपर कराने की जरूरत है। कहने का मतलब ये सिंपल सा कि विष्णु, लैंग्वेज या मतलब एक्चुअली मेरी वाइफ कह रही है कि इसमें पारी होम्योपैथी, ओके आप होम्योपैथी ऑलरेडी ले रहे हो राइट, तो होम्योपैथी विल, हाँ जी, डॉक्टर शर्मा से, हाँ जी। तो होम्यो अच्छा शर्मा से ले रहे हो चंडीगढ़, हाँ हाँ, ठीक है। हम सर, मुझे तो अच्छा लग रहा है उनसे नहीं, ऐसा दवा लेना। ऐसा कुछ नहीं है एक्चुअली, हमारा एक्सपीरियंस अच्छा हाँ हाँ होता डजंट मीन कि वो डॉक्टर ही अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं होता। हाँ 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 हाँ, सर, थोड़ा हाइपर हो रहा था, बट अभी थोड़ा ठीक हूँ मैं। बाद में जब सबका सुना ना कि वो हाइपर हो रहा है, मेरे को भी लगा ये बहुत हाइपर हो रहा है। फिर मुझे लगा इसको कुछ हेल्थ इश्यू थे थोड़े, कॉन्स्टिपेशन हो गई थी, यूरिन इन्फेक्शन हो गया था मे बी, तो अभी ठीक है, अभी इज नाउ ओके। ठीक है, तो हाँ जी। अभी हाँ आपको लैंग्वेज थेरेपिस्ट की जरूरत है। अभी कल हमारा एक ओके सेशन है 5 बजे ओके। उनके साथ, कृष्णा मैम के साथ, जिन्होंने इसको लैंग्वेज थेरेपी दी था। तो सर जैसे ना मैंने अभी इसे सिखाया है, इसे दूध अगर लेना है, तो मैं बोलती हूँ बोलो मम्मा हम्म, मुझे दूध पीना है, तो अब वो समझ गया है। अब वो कोई भी चीजें आती है, मतलब दूध आता है स्पेशली, तो बोलता है मम्मा मुझे दूध पीना है, ऐसे करके अभी बोलने लगा है, मतलब। लेकिन ये वो शायद बाई हार्ट करके बोल रहा है, या राइट जो भी है। राइट राइट, हम्म। वो अभी आप फिर अगला क्वेश्चन पूछोगे कि वो सवेरे से लेके शाम तक जो भी एक्टिविटीज करता है बता नहीं पाता, कल उसने क्या किया हाँ बता हाँ नहीं सकता, है ना। ये सारी चीजें ना लैंग्वेज थेरेपिस्ट हेल्प करता है। जैसे कि कहा कुछ भी हो गया कि हम बाहर हाँ जाएंगे, हाँ। जैसे बाहर जाना है, हाँ क्यों जाना है, क्या करने जाना है, तो घूमने जाना है हम, ओके। अच्छा बाहर जाके क्या करोगे, तो मैं ये करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर वो करूंगा, ऐसा करूंगा। ये इस तरीके की बातें बच्चे तभी कर पाते हैं जब उनको थोड़ा सा लैंग्वेज की तरफ ट्रेन किया जाता है कि देखो। और वो ना धीरे धीरे होता है, शुरू में जब ये लैंग्वेज हम्म। थेरेपिस्ट होंगे ना, आप देखोगे कि वो कहानी सुना रहे हैं कि मैं सब ओके। सवेरे उठा, मैंने ब्रश किया, मैंने ये किया, फिर वो किया, ऐसे ऐसे करके 4-5 हम्म। सेंटेंस में पूरा डे का रूटीन हो गया। अब तुम बोलो ये बात को। अब जैसे उसको रट अच्छा जाएंगी अच्छा। चीजें, रट जाएंगी, शुरू में आपको लगेगा कि यार तो रोबोट की तरह रट रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ हाँ। जैसे ही वो ओके। रट लेगा, ऐसे ही इसको ना 3-4 अलग अलग चीजें स्टोरीज सुना दी जाएंगी कि कुछ स्टोरीज भी होंगी, लिटरल स्टोरीज होंगी कि ये हाथी है, ये भालू है, इसने इसको ये दिया, उसने ऐसा किया। तो इसका दिमाग ना चलना शुरू हो जाएगा कि अच्छा मुझे इस अच्छा। इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना है और उससे एक रेलेवेंट चीज निकालनी है। एंड स्लोली ग्रेजुअली यू हम्म। विल फील कि अब ये डे टू डे चीजों को बता रहा है कि हमारे घर आज वो आए, उन्होंने मुझे ये दिया और ऐसा किया अच्छा और अच्छा। वैसा किया, ये सब चीजें। मैं तो तो ये सोच भी ये नहीं सकती स्टोरीज इतना सब कुछ वो बोलेगा। नहीं नहीं। जी। तो वो हो जाता है, वो हमें भी लगता था, लेकिन चीजें हो जाती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो आप एक बार इसको फॉलो करके देखो। तो सर इसके लिए जैसे ओटी तो इसकी है चल रही है, तो इसके लिए स्पीच थेरेपिस्ट अलग से करवाना पड़ेगा, जैसे वो इसके लिए लैंग्वेज थेरेपिस्ट चाहिए होगा आपको। आई एम नॉट लैंग्वेज श्योर अबाउट, थेरेपिस्ट? हाँ ओके क्योंकि हमारे यहाँ पे तो स्पीच और लैंग्वेज अलग अलग है। ओके 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 ओके। वैसे तो कहने के लिए स्पीच वाले ही लैंग्वेज पे काम करते हैं, बट पता नहीं, मतलब हमें नहीं फायदा हुआ उस स्पीच थेरेपिस्ट से जो कहता था कि हम लैंग्वेज ही देंगे। तो आपने ओटी भी करवाई फिर? जैसे कि आपने, आपसे एक बार बात हुई थी, ये भागता दौड़ता भी था आपका बेटा, तो ये भी भागता दौड़ता तो है, वो तो हाइपर एक्टिविटी है ना, फिर वो नॉर्मल है।
हाँ जी, हाँ जी, ये तो नॉर्मल है। मतलब वो आपने बोला था ना मॉल में जाओ तो वो शीशे के सामने ही थोड़ा-सा शांत रहता था आपका बेटा। तो हम्म। ये सेम चीज़ें हैं, बस मुझे ये अच्छा तो लैंग्वेज थेरेपिस्ट चाहिए, मैं पता करती हूँ ये कहीं हमारे यहाँ मिल अगर होएँगे तो। आप देखो उनसे। और अब कल मैंने बुलाया तो है उनको। अब देखते हैं कि कितना हमारा इनसे डिस्कशन हो पाता है। कल एक चीज ये होगी कि अ, कैसे स्पीच से लैंग्वेज की तरफ जाना है और इसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं, क्या क्या फ्लो होते हैं। हम कोशिश अच्छा, अच्छा, करेंगे अच्छा। उसके ऊपर डिस्कशन करना, ताकि एक पेरेंट एक कह सकते हैं कि खुद का एक फ्रेमवर्क बना ले अपने बच्चे के हिसाब से कि ठीक है, मेरे बच्चा आज यहाँ पे है और उसको मुझे यहाँ लेके जाना है, तो दीज आर द पॉइंट्स जिसके थ्रू मेरे को लेके जाना है। ठीक है। ओके, ओके, और ओके। आने वाले दिनों में हम और सेशंस करेंगे इसके ऊपर, स्पीच और लैंग्वेज के ऊपर, क्योंकि प्राइमरी इश्यूज जो है ना वो स्पीच और लैंग्वेज और ओटी को लेकर के ही हैं। क्योंकि हाँ जी, हाँ यही जी, मेन यही चीजें, होता भी है। हुँ। राइट, क्योंकि यही चीजें बिहेवियरल और अदर इश्यूज को प्रोपेगेट करती हैं। अगर आपके बच्चे में इस कम्युनिकेशन नहीं है तो उसके बिहेवियर को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है वो। हाँ, ये ठीक है। तो है। बिकॉज़ वो इरिटेशन फिर होएगी और राइट, फिर वो दूसरे तरीके से निकलती हुँ, है, जैसे अभी इन्होंने बताया गुरप्रीत ने कि हेड बैंगिंग कर रही है। वो क्यों कर रही है? क्योंकि वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है। हुँ, 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 हुँ। वही होता है ना, मतलब यहाँ वाला issue दूसरे इशू को जन्म दे देता है, तो इट्स बेटर कि दूसरे इशू जनरेट हो उससे पहले इसको पहले फिक्स कर दिया जाए। अब चाहे उसके लिए ओटी देनी पड़े, चाहे सप्लीमेंट देना पड़े, एक्टिविटी हो उसके थ्रू। ठीक है। ओके, ओके, ओके। ठीक है। और बाकी जो क्वेश्चंस ओके। हैं सर हम लोग सर ग्रुप में। बस हाँ जी। सर लास्ट लास्ट 2 मिनट में बस इतना बता दीजिए, दर्श के साथ ऐसे कुछ सेंसरी इश्यूज थे क्या, जैसे स्मेल करना या फिर खुद में ही सिंगिंग करते रहना एक्शन करके? देखो, खुद में तो वो रहता ही था। खुद में तो मतलब हमें लगता था कि पता नहीं क्या। मतलब एक्शन भी कर रहे हैं, गाना भी गा रहे हैं, एक्शन भी कर रहे हो, किसी का सुन नहीं रहे हैं उस वक्त? नहीं, ऐसा तो नहीं है। जैसे मैं छोटे को तो मैंने आपको सब बता दिया किस तरीके से था। जैसे अब आजकल क्या होता है कि वो शायद अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है। इसको कुछ एक एक्टर है बहुत अच्छे लगते हैं, टाइगर श्रॉफ वगैरह ये सब, तो उनके गाने वगैरह देखता रहेगा, डांस करता रहेगा अपने आप। और आजकल अभी पीछे 4-5 दिनों से सेल्फी खींचने का शौक चढ़ा हुआ है, तो मुंह टेढ़ा कर करके फोटो खींचता रहेगा अपनी, अपने आप में ही। हाँ, तो ओके। हाँ, मतलब अब उसको क्या कहेंगे, पता नहीं, इशू तो नहीं है, तो नॉर्मल चीज़ है, मेरे ख्याल से और सभी इस बच्चे करते ही हैं सारे। जी, जी, जी। नहीं, और स्मेलिंग करना किसी चीज़ को इनएप्रोप्रिएट, कोई भी चीज़ है स्मेल करना और ये करना, इस तरीके के सेंसिटिव इश्यूज़ थे ये उसको नहीं, या नहीं थे? ये वाले तो बिल्कुल नहीं थे। सेंस सॉरी, स्मेल करने वाला नहीं था, मैंने कभी नहीं देखा। ओके, सेंस या टैक्टाइल, ओके, ओके। ये वाले तो नहीं थे। लेकिन हाँ, इसके अलावा बहुत सारे इश्यूज थे, वही जो मैंने बताया आपको, रील रोटेट करना, अपनी उंगलियों को टेढ़ा जी, करना, जी। चीजें थी। एक्चुअली मेरी बेटी को मुझे सेंसरी इश्यूज ज्यादा लगते हैं बाकी सबके कंपेयर में, उसी की वजह से शायद चीजें बढ़ नहीं पा रही हैं, क्योंकि अभी वो सेटल नहीं हुए हैं पूरी तरह से। आप ना एक काम करना, पास्ट की कुछ वेबिनार्स की वीडियोस हैं, मैं शेयर करूंगा आपको, आप वो देखना। ठीक है। वैसे चैनल शेयर कर दूंगा, आप उसमें देखना जो हमने, क्योंकि पास्ट में ये सब चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ा टाइम लगेगा। जी। उसमें सारे सेंस ओके। सेंस के ऊपर हमने बात की हुई है, सो जस्ट ट्राई टू गो थ्रू देम, प्रोबेबली आपको वहाँ से आंसर मिल ठीक जाए। ठीक है। और लास्ट ठीक है में सर। जो पूजा मैम ने जो हमें कराया था सेशन, उसमें भी वो सब चीज़ें रिकॉर्डेड है। ठीक है। ओके सर। ओके सर, थैंक यू। ऑलराइट, चलो, थैंक यू थैंक यू सो सो मच मच। एवरीवन। सो कल मिलते हैं थैंक दोबारा। यू सो मच फॉर योर टाइम। ऑलराइट, या बाय।